Good afternoon, friends. Once again, welcome to each one of you in this discussion meet of the 47th GST Council meeting, which scheduled on 28th, 29th, and decision recommendations has been hosted by the Finance Ministry, and we will discuss all the relevant amendments proposed or implemented as stated by Council. We have with us our expert CA Ankit Garg ji, CA Siddhant Pathak ji. Welcome to you once again to both of you. Thank you, Sumit ji. Thank you, Sumit. Thank you. And we have participant from entire North region. I can see Manu Dhal ji from Kathal, and Nitin Mahajan ji from Jammu, and my partner Mohit Chaurasia ji, and entire friends. Recording will also be shared to other participant. Good afternoon. And whatever queries or interaction you want to make, you can unmute or you can ask your query. My efforts would be कि आज जितनी भी क्वेरीज हैं रिलेटिंग टू दिस रिकमेंडेशंस, पहले रिकमेंडेशंस क्या क्या आई हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद जो क्वेरीज हैं रिलेटिंग टू दिस टॉपिक हम आज उसको कंसीडर करेंगे नेक्स्ट 1 आवर में. Now I request Ankit ji to start the deliberation. I thanks team CASA and I thanks Siddhant Pathak ji to join with me and Sumit ji. Basically मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा. जो कल की मीटिंग कंक्लूड हुई है 47th GST काउंसिल मीटिंग, इसमें जो चेंजेस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Moreover, these changes, if I conclude completely in a brief, is in favor of the business, is in favor of the industry, because the changes are more with regard to the clarifications. Even the rates which are changed is changed to avoid the inverted duty refund by the industries, because they are facing due to the output rate which is low and their input rate is high. So majorly the changes are in favor of the business. So we discuss, me and Siddhantji will discuss it point to point, and accordingly we have shared the PIB release of the 47th GST Council meeting. On your screen you are seeing that, so nothing would be left blank, and we will discuss one to one up to the end of the every point which they have recommended. For friends, these are the recommendation. These are not the law as of the date. The law, these will become a law only when it is notified. So these things we have to understand. This is not a law right now. This is just a recommendation. So I am handing over the mic to Siddhantji. Siddhantji, please, you start this, brief about this. Yes, Ankit, to continue what Ankit ji has said, yes, it was a blockbuster meeting, 2 days meeting, and majority of the recommendations are in favor of assessee, and soon they will be notified. They have even said that in the press release itself that they are likely to be get effective from 18th of July, the date they have chosen. Now, if I were to divide this whole press release, the first recommendation relates to, as Ankit ji said, increase in rate of goods and certain services to remove the inverted duty structure. Last 2 years we have seen that it has been the intent of the government to remove the inverted duty structure as much as possible. पहले वो leather और footwear industry में लेकर के आए. इस मीटिंग में भी जो job work related services हैं provided for manufacture of leather goods or footwear, the rate has been increased from 5 to 12%. तो इस तरीके से inverted duty को eliminate करने के लिए they have basically increased the rates of certain goods and certain services. इसमें अगर कुछ important हम items को discuss करें तो services के केस में जहां पे works contract services provide होती थी to central government, state government, local authority or union territory, the rate was 12%. When these works contract services were being provided to these type of entities, they have increased the rate to 18%. Similarly,
works contract in relation to metro, roads, railway, bridges, crematorium, water treatment plant. इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पहले 12% पे थी, नाउ दे हैव रिकमेंडेड 18%. तो दे हैव बेसिकली एलिमिनेटेड द लिटिगेशन. कहां 12 लगेगा, कहां 18 लगेगा, एक तो ये पॉइंट कंफ्यूजन का जो था वो खत्म हो गया. और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्वर्टेड ड्यूटी का स्ट्रक्चर क्रिएट होता था वो भी एलिमिनेट हो गया. देन अंकित जी, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू डिस्कस इन फर्स्ट पार्ट जो रेट्स में इंक्रीज है? Basically, I think that we should start from point to point, and Yeah. last I am basically discussing with the rate part, and then I want that you should add on in the rate part. Like starting from the starting, basically it is a 47th GST Council meeting, as everybody know. The main, if we talk about the rate, the government has clarified these rate would be changed from the 18th of July. Accordingly, what I am saying from 18th of July is only applicable when it is notified. We have seen some instances that the rate has been notified at the 12 in the night, at the 10 in the night. So till it is not notified, it cannot be a law. So though they have recommended the date, they have recommended that these rate would be applicable from 18th of July, which we are discussing the below. Now we are talking about the rates. In the rates we see, as already told by Siddhanji, the government has also specified the rate rationalization to remove inverted duty structure. कि ये जो rates change करे गए हैं, इसलिए change करे गए हैं because inverted duty structure को rationalize करना चाहती है government. Government कहती है कि B2B supply में कोई issue है भी नहीं. अगर हम देखें GST जिस तरीके से बना हुआ है, तो B2B supply में कोई issue है भी नहीं. जो मेरे inputs है और जो मेरा आउटपुट है, अगर ITC मेरा पूरा यूटिलाइज हो रहा है और सामने वेंडर को ITC मिल रहा है, तो अल्टीमेटली देयर इज नो लॉस टू द इंडस्ट्री. टू अवॉइड द रिफंड थिंग्स, दे हैव चेंजेस द रेट. द मेन रेट चेंजेस द प्रिंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग. दे हैव चेंज इट फ्रॉम basically if we see it from 12 to 18%. Then we see the knives, cutting blades 12 to 18%, power driven. I am just taking the rates which are basically affect everyone and which are major. Like you see LED lamps, light fixtures, these have been changed from 12% to 18%. And if we move about leathers also, they has been changed from 5 to 12%, which are the major changes. Further, they have stated that no inverted duty refund would be allowed for edible oil and coal. Moving towards the services, if we see the main services, Siddhanji has already discussed. With regard to work contract, there is a major changes. Who are dealing in the government, who are supplying to the educational institution, they have been changed from 12 to 18%. And there is a changes in the job work also with regard to manufacture of leather goods and footwears. These can be changed from 5 to 12%. So these are the major changes which are with regard to the rate, and the government has stated is to avoid the inverted duty structure. They have made these changes. Siddhanji, with this A para, you just add on what if you want. Yes, I wanted to add on Ankit ji कि जैसे जो consumers को directly goods affect करते हैं like LED lamps, lights, then solar water heater system. यहाँ पे रेट 12 से 18 किया गया है. इसमें हमें ये डरने की जरूरत नहीं है कि costing will go up. You have to understand ये रेट इसलिए इंक्रीज किया गया है ताकि इन्वर्टेड ड्यूटी खत्म हो जाए. जो सप्लायर के हैंड्स में इनपुट्स पे टैक्स कंपोनेंट था, इंसिडेंस था 18% का, जिसका वो क्रेडिट यूज नहीं कर पाता था बिकॉज आउटपुट वाज टैक्सेबल एट 12%, और उसको रिफंड लेने जाना पड़ता था डिपार्टमेंट से, विच हैड एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट. ब्लॉकेज ऑफ फंड्स थी, वर्किंग कैपिटल थी इन द फॉर्म ऑफ रिफंड. तो जब ये रेगुलराइज हो जाएगा, दोनों चीजें 18 पे आ जाएंगी, एट पार हो जाएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी खत्म हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट की अल्टीमेट कॉस्ट बीइंग अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट सेम ही रहेगी. Yeah, moving forward with regard to B part, other changes recommended by the council. If we see that main is the cut and polish diamond 0.25 to 1.5%. It is a big change for the basically jeweler industries. यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होगी, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज. हाँ, यहाँ कॉस्ट इंक्रीज होगी. And with regard to Tetra Pak, they have changed from 12 to 18% packing cost. Though it is for the manufacturers, but it will not affect the business.
Other than that, I don't think there is more changes. Basically, with regard to the road construction industries, that there is a change in the rate, which is 18%, 5/18% था, तो उसे उन्होंने खत्म करके लिटिगेशंस को सीधा 18% कर दिया। एक डिफेंस के लिए चेंजेस है, और वो भी स्पेसिफिक वेंडर स्पेसिफिक लिस्ट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जिसके लिए चेंजेस करे गए हैं, वो निल किया गया है, वो होना भी चाहिए था। देन मेन चेंजेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय द रोपवे, ये काफी महंगा था और ये B2C को इम्पैक्ट करता था, बट इसको गवर्नमेंट ने 5% कर दिस इज बेसिकली अ गुड थिंग फॉर द कंज्यूमर्स। नाउ moving towards second part, renting of trucks oblique goods carriage where cost of fuel is included. This has been, the rate is 18%. Now they have streamlined, they have basically a 12% rate right now. So Siddhanji, please you add on in B part. अंकित जी, you have well clarified. यहाँ पे कट एंड पॉलिश डायमंड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंज्यूमर के लिए, जहाँ पे उन्होंने रेट को मोर देन डबल कर दिया। आई वुड से इट इज मोर देन अप्रोक्सीमेटली 6 times. सो ये रेट एक इंक्रीज कॉस्ट आएगी कट एंड पॉलिश डायमंड के केस में। देन रोपवेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का पीछे भी काफी चल रहा था डिस्कशन, तो उन्होंने उसी लाइंस पे उसको रेट कम किया है। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट 2 अमेंडमेंट्स हैं, जहाँ पे फ्रैक्चर रिलेटेड अप्लायंसेस, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड अप्लायंसेस के रेट को उन्होंने कम किया है, विच इज वेलकम अमेंडमेंट। और रेंटिंग ऑफ ट्रक्स गुड्स कैरियज, ये एक एम्बिग्विटी थी कि जहाँ पे विद फ्यूल रेंटिंग होती है वहां पे भी रेट 18% लग रहा था, whereas it should have been 12%, क्योंकि जो फ्यूल का कंपोनेंट है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो दैट इज अ वेलकम अमेंडमेंट। वी कैन मूव ऑन टू पार्ट सी। आई डोंट फील particular query होगी तो we can discuss it. Just 2 queries are there. Deepak Singh ji is asking, I have query related to food item. Which item will it cover? Para C1. Which there is basically Deepak ji, the rate of the food item is below. If we go, अभी हमारा बच रहा है, हम जब कंप्लीट करेंगे आपकी क्वेरी का आंसर देंगे। और एक और क्वेरी है मनीष बंसल जी की, relating to, can you explain with regard to Tetra Pak? Basically, Manish ji, they have specifically written Tetra Pak and static packing papers. So basically, these are regarding to the packing industry. We will see when the notification will be notified that what HSN they have effected exactly, and accordingly the rate would be taken care from that notification. Siddhanji, you please, if you want to add, please add it. One query is there with regards to para C1. देखिए इसमें क्या है कि certain food items are being sold unbranded, there is no brand, but they are pre-packaged and there is label. तो वहां पे गवर्नमेंट की इंटेंट है कि इसको टैक्स किया जाए, और they will अभी तक उन चीजों पे टैक्स नहीं लगता था being unbranded, but now they will impose tax on it. इसमें भी ना सिद्धांत जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है C1, एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। इसके अंदर क्या था, जो ग्रेन्स, जो फूड आइटम्स हैं, सीरियल्स हैं, वो दे आर, इफ यू सी द नोटिफिकेशन ऑफ 1/2017 with regard to the rate of the GST, these are exempted if they are unbranded and are not packed in pre-packed packagings. So the government is with the intention कि जो branded है और वो pre-packed है वो अभी भी taxable है, but उसे इन्होंने pre-packed और pre-labeled भी कर दिया है। And even they are changing with regard to this to curd, lassi and buttermilk. They have specified this also, which are exempted previously. So there is a slight change. अभी इसके अंदर जो basically brand अभी भी मतलब unbranded को taxable नहीं कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। इन्होंने जो pre-packed और pre-labeled वाली condition थी, they are changing this conditions. So Siddhanji, you please add on in this C1 and clarify more with regard to this. See, according to me, जो pre-packaged, जहाँ पे branding नहीं है, या उन्होंने जो पर्टिकुलर कंसर्न सप्लायर है उसने अपनी ब्रांड को फोरगो कर दिया है, बट वो पैकेज्ड आइटम में उसे बेच रहा है, पैक करके बेच रहा है। लूज दही नहीं बिक रही है, लूज छाछ नहीं बिक रही, बट इट इज पैकेज्ड। तो वहां पे गवर्नमेंट की इंटेंट है इसे टैक्स करने की, एंड दे विल इंपोज टैक्स। सिद्धांत जी, यहाँ मेरा एक कंसर्न है। सो बेसिकली जैसे पल्सेस होती हैं या फिर ड्राइड मखाना है,
तो वो हमेशा पल्सेस होती हैं या मखाना। ड्राइड मखाना, हाँ तो वो हमेशा प्री पैकेज्ड फॉर्म में जाती है। एंड देन सेकेंडली उनपे अभी तक क्या प्रैक्टिस चल रही थी कि उस पे मार्का तो होता था, बट वी हैव जस्ट मेंशन दैट कि दिस इज नॉट द ब्रांडेड कोर्स या फिर रजिस्टर्ड नहीं है। तो बेसिकली मैं सुबह मॉर्निंग भी स्टडी भी कर रहा था इस चीज को लेके। तो जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है उसमें प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड को भी वहाँ डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली वहाँ उन्होंने एक इंटेंशन ये आती है कि जो प्री पैक्ड का मतलब है कि वो किसी भी नेचर में हो एंड यू विल नो कि उसमें कितना क्वांटिटी या कितनी केजी माल सप्लाई होगा। एंड प्री लेबल्ड का जहाँ तक मुझे उसका इंटरप्रेट कर पाया कि उस पर आप कुछ भी मेंशन कर रहे हैं, देन इट विल बी एज्यूम्ड कि यस वो आपका मार्का है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसमें मेरा छोटा सा कंसर्न यही है कि यहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहा है प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड। तो ये बेसिकली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर एनी वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा डाउट तो क्रिएट हो रहा है कि हाउ जस्ट वी कैन या सर ये इट्स अ गुड क्वेरी। मैं भी यही आपसे आई वाज रीडिंग इट और मेरा भी यही आ रहा था कि प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड दोनों जब सेटिस्फाई होंगे तभी एक्सक्लूड होगा फ्रॉम द स्कोप ऑफ एग्जेम्पशन। सी क्लैरिटी विल कम व्हेन द नोटिफिकेशन इज देयर, वहां पे प्रॉपर वर्डिंग्स यूज की जाएंगी। अभी इन्होंने अपनी जहां पे डिस्क्लेमर में भी दिया है कि सम थिंग्स हैव बीन रिटन इन हेस्ट, बट प्राइमा फेसी मुझे ये लगता है कि exclude from the scope of exemption to exclude from it pre-packaged and pre-labeled। अगर pre-packaged भी होगा बट लेबल्ड नहीं है तो वो इसको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। ये मेरा प्राइमा फेसी अंडरस्टैंडिंग है कि एक केस अगर सेटिस्फाई होता है तो वो एक्सक्लूजन से एग्जेम्पशन से एक्सक्लूड हो जाएगा। बट वी हैव टू सी द नोटिफिकेशन, वी हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन। मेरा भी मानना है सिद्धांत जी, जो गवर्नमेंट की इंटेंशन लग रही है मुझे कि बेसिकली जब आप इसकी नोटिफिकेशन देखेंगे ना 1/2017, तो उसमें ब्रांड के साथ साथ प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड की कंडीशन भी मैंडेटरी है। where name of the manufacturer is written or something is there which denotes relates it to a particular supplier, इस तरीके से there are हाँ, तो अगर तो अब मुझे ये जो इंटेंशन गवर्नमेंट की लग रही है नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई होगा कि माइट बी दे विल tax the branded items even it is not a pre-packed, even if it is a branded and it is in a कट्टा और वो जो यूनिट कंटेनर वाली लिमिट है जो उस पे क्लैरिफिकेशन है। तो लेट्स सी इन द नोटिफिकेशन टू कम, जो लग रहा है कि जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो टैक्सेबल गवर्नमेंट कर देगी। अच्छा, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, जो फूड ग्रेन अनाज मंडी में बिकता है क्या उस पे टैक्स लगेगा? तो मेरा कहना ये है, दीपक सिंगला जी का क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं सर, उस पे कोई टैक्स की बात गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सिद्धांत जी, वो एज इट इज एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पे कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बात नहीं कर रही है। अंकित जी, बट मेरा कंटेक्स्ट क्या है, सपोज जैसे फूड, यदि आप फूड ग्रेन की बात करते हैं जो मंडी में होता है, यदि अगेन यहाँ पे वही क्लैरिटी की थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी है, यदि वो सपोज पैकेज में है एंड उस पे आपने, क्योंकि सपोज ब्रांडेड तो पहले ही एग्जेम्प्ट था, यदि सपोज गवर्नमेंट ने स्कोप आउट किया है और वहां पे प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड किया है, तो यस समथिंग कि जो ब्रांडेड नहीं है तो उसको भी अब वो दायरे में लेके आना चाह रहे हैं। तो अगेन यदि वो प्री पैकेज्ड है और प्री लेबल्ड है, जैसे कि कोई भी नाम रख देता है मंडी में XYZ एंड कंपनी, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो अगेन गवर्नमेंट की मुझे इंटेंशन ये फील होती है कि अब मतलब वो ब्रांड को नहीं, अब मान लो आपने कट्टे पे मार्का भी प्रिंट करवाया है, तो यस it will be come under the scope of GST. Let's see दीपक जी, notification will clarify all these questions, but अगर हम इसे पढ़े ना पैरा को, तो उन्होंने क्या कहा है, GST was exempted on specified food items grains when not branded or right on the brand has been foregone, they have full stopped. It has been recommended to revise the scope of exemption to exclude from its pre-packed and pre-labeled retail pack in terms of legal metrology act, including pre-packed, pre-labeled curd, lassi and buttermilk। तो इसे पढ़ के जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ब्रांड और अनब्रांडेड से छेड़छाड़ नहीं कर रही।
गवर्नमेंट जो इसमें चेंजेस ला रही है वो प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड को लेके आ रही है, जिसकी वजह से शायद कुछ एम्बिग्यूटी चल रही थी. वी विल क्लैरिफाई, नॉट एन इशू. वी विल specifically clarify on a group when the notification will come. Now moving अंकित जी, forward. इसमें एक So further, point और it clarify is कर written देना as a चाहिए. retail pack also, sir. There. So Mandi, I think, will be या मंडी मेरे From अकॉर्डिंग मंडी में इंक्लूड नहीं होगा. क्योंकि रिटेल मंडी से तो it is not for retail, ना. It is clearly mentioned in this. It is in the retail form, retail pack. या वही हम कह रहे हैं सर. जो गवर्नमेंट, अब जब हम 1/2017 पढ़ते हैं ना, तो पहले ब्रांडेड और ब्रांड फोरगॉन वाली बात होती है, फिर प्री पैकेट प्री लेबल्ड वाली बात होती है. तो गवर्नमेंट उसको तो छेड़ ही नहीं, ब्रांडेड और ब्रांडेड फोरगॉन को छेड़ नहीं रही, वो प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड वाली बात कर रही है. Exactly. जी जी सिद्धांत जी आप अंकित प्लीज. जी, मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा था जी प्लीज. कि जैसे पैडी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जो डायरेक्ट मंडी में बिकता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जेम्पशन रहेगी बिकॉज दैट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. राइस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. डेफिनेटली सिद्धांत जी, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा. मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ. व्हेन द गुड्स हैज बीन सोल्ड इन द मंडी, द फार्मर ब्रिंग इट लूज, और इन द जो कट्टा होता है वो भी मतलब लोकल कट्टे होते हैं, दैट इज नॉट अ ब्रांड. और उसके बाद जब मैन्युफैक्चरर उसे बाय करता है, वो उसे ब्रांड और अनब्रांडेड करता है फॉर फर्दर सेलिंग. तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे तो कहीं जीएसटी की कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं है. एग्जैक्टली. जी प्लीज आगे चलते हैं, थोड़ा फास्टली चलते हैं. C2 के अंदर चेक्स और बेसिकली बैंक अब आपसे चेकबुक के भी चार्जेस के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करेगा. एंड देन अदर देन दैट मैप्स वगैरह को टैक्सेबल करा है गवर्नमेंट ने. पेट्रोलियम, कोल बेड, मीथेन को 5 से 12% चेंज करा है रेट. साइंटिफिक टेक्निकल इक्विपमेंट्स को जो सर्च इंस्टीट्यूट को दिए जाएंगे उनको रेट को निल कर दिया गया है. नहीं, एप्लीकेबल रेट्स उन्होंने स्पेसिफाई करा है, तो नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा. ई वेस्ट पे इन्होंने 5% से 18% कर दिया है रेट, और मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं एक लेवल पे ठीक किया गया है. हाँ जी. जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जो इसमें डील करते हैं उनको आईटीसी मिल जाना है, जो वो बाय करेंगे, और जो फर्दर सेल करेंगे वो भी B2B मेजरली सेल करते हैं, तो उन्हें भी आईटीसी मिल जाना है. तो इससे कोई चेंज मेजर आएगा नहीं. सिद्धांत जी प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए. We can move to C4. अब ये in case of services exemptions have been rationalized. ये थोड़ा सा important है understand करने के लिए. First exemption which is being withdrawn is अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मैं फ्लाई करता हूँ to and from, तो exemption पहले बिजनेस और इकोनॉमी क्लास दोनों को थी. अब इकोनॉमी क्लास को वो exemption कंटिन्यू करेगी, बिजनेस क्लास को टैक्स देना पड़ेगा. Then ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और अ वेसल ऑफ रेलवे इक्विपमेंट, अगर कोई रेलवे इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो रही है बाय रेल और वेसल, एग्जेम्पशन हैज बीन विथड्रॉन. स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ कॉमोडिटीज लाइक कॉटन, जैगरी, इस तरीके की कॉमोडिटीज जिनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं कंसिडर किया जाता और उन पे टैक्स लगता है, उनकी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग पे भी जो एग्जेम्पशन थी वो विथड्रॉ कर ली गई है. देन सर्विसेज बाय आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, एफएसएसएआई, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आरबीआई पे कभी टैक्स नहीं लगा, बट अब उन्होंने एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर ली है, दे हैव टू पे टैक्स. इससे होगा क्या कि आरबीआई विल स्टार्ट गेटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो टू अलाउ देम स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, दीज एग्जेम्पशंस हैव बीन रैशनलाइज्ड. देन सर्विसेज बाय जीएसटीएन नेटवर्क टू द गवर्नमेंट हैव आल्सो बीन टैक्स्ड, एग्जेम्पशन इज बीइंग विथड्रॉन. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. टू बिजनेस एंटिटीज, आई एम अ लैंडलॉर्ड, आई एम गिविंग माय रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस टू अ कंपनी हु इज यूजिंग इट फॉर हिज डायरेक्टर रेजिडेंस. तो वहां पे पहले एग्जेम्पशन थी क्योंकि वर्डिंग्स थी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. मैं जो रेंट कर रहा था वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग थी फॉर यूज एज रेजिडेंस, डायरेक्टर अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा था. बट अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी बिजनेस एंटिटी को इस तरीके से रेंटिंग पे दोगे तो वहां पे टैक्स देना पड़ेगा, अल्टीमेट पर्पस चाहे रेजिडेंस का ही हो. देन सर्विसेज, हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ एग्जेम्पशन विथड्रॉ की गई हैं. ये थोड़ा सा हेल्थ केयर इंडस्ट्री इसको अपोज कर सकती है. सर्विसेज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स, जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स के लिए होता था, प्रमोट करती थी गवर्नमेंट, अब इससे एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर ली गई है. ये सर्विस टैक्स के जमाने से एग्जेम्पशन थी. बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की जो एग्जेम्पशन मिलती थी ट्रीटमेंट प्लांट्स को, उनकी एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर ली गई है. और एक जो इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन
हेल्थ केयर सेक्टर में जहां ट्रीटमेंट, पेशेंट के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर पे कहीं भी टैक्स नहीं है, वहां पे एक कंपोनेंट पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है। जब आप ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं तो आईसीयू के अलावा जिस रूम में एडमिट होते हैं और उसका अगर चार्ज पर डे का 5,000 एंड अबव है तो वहां पे पूरी कंसिडरेशन पे टैक्स लगेगा। ये क्वेश्चन आएगा कि 5,000 के ऊपर लगेगा या 6,000 है तो पूरे 6,000 पे लगेगा। बट जिस तरीके से इन्होंने वर्डिंग्स प्रेस रिलीज में मेंशन की है, उन्होंने कहा है टू द एक्सटेंट चार्ज्ड, तो वो मेरा मानना ये है, अभी की अंडरस्टैंडिंग ये है प्राइमा फेसी की पूरे अमाउंट पे वो टैक्स इंपोज करेंगे 5% विदाउट आईटीसी। तो अब हॉस्पिटल्स को भी अपने इस एलिमेंट पे टैक्स देना पड़ेगा जहां पे वो पेशेंट को एडमिट करते हैं और रूम रेंट अलग से चार्ज करते हैं, 5,000 एंड अबव है रूम रेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है जो कि विड्रॉ की जा रही है। देन होटल अकोमोडेशन सर्विसेज 1,000 का जहां टैरिफ है पर डे का, वहां पे उन होटल्स को एग्जेम्पशन थी, अब उनको आईटीसी अलाउ करने के लिए एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी है। तो 7,500 तक जो भी पर डे की अकोमोडेशन है बाय होटल सर्विस प्रोवाइडर्स, वो 12% तक टैक्स रहेगी विद आईटीसी। और जहां पे एक भी रूम 7,500 एंड अबव बिकता है, आई वुड से कि वो 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी होती है, वहां पे 18% विद आईटीसी टैक्स रहेगा। तो जो पहले एग्जेम्पशन थी अप टू 1,000 वो विड्रॉ कर ली गई है। अब इसमें सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री हिट होगी वो ये देखना होगा नोटिफिकेशन में हमें कि क्या हॉस्टल्स जो कि अकोमोडेशन की सर्विस देते हैं विच इज अप टू 1,000 रुपीज, वो भी इसी एग्जेम्पशन में कवर होता था एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में, क्या उसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? इन माय व्यू इट शुड कंटिन्यू। होटल अकोमोडेशन सिर्फ होटेलियर्स को टैक्स करेंगे, हॉस्टल अकोमोडेशन पे ये इसको एग्जेम्पशन को नहीं विड्रॉ करेंगे, but that has to be seen at the time of notification only. इसके अलावा जो एंट्रीज हैं, I would say that are not applicable to the mass। अंकित जी अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सिद्धांत जी आपने बिल्कुल बड़े अच्छे से कवर किया है इसे। इसमें मेन जो चीजें हैं, जो स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ कमोडिटी विच अट्रैक्ट टैक्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये नट, स्पाइसेस, कोपरा, जैगरी, कॉटन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थे, जिसके अंदर और भी 10 प्रोडक्ट्स थे जो कि एग्जाम थे। बट अब इन्होंने स्पेसिफिक ये नट्स, स्पाइसेस, कोपरा जिसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको वेयर हाउसिंग वाले को वाले उस पे भी जीएसटी लगेगा, एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली है। इसका इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए बिकॉज इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एफ पॉइंट सेकंड पैरा के अंदर जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू बिजनेस एंटिटी। सम क्वेश्चन आर देयर इन द चैट बॉक्स। बेसिकली सर इसमें सिंपल लिखा है उन्होंने, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आप किसी भी बिजनेस एंटिटी को देते हो, यानी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ले रहा हूं और उसको आप बेसिकली मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो वो अकॉर्डिंगली कवर हो जाएगा। इट मींस कि लाइक मैं इंडिविजुअल में रजिस्टर्ड हूं, तो ये अब बिजनेस एंटिटी अगर मेरी रजिस्टर्ड है तो और उसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट है और उसके नाम पर चीजें हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस भी है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, कंपनीज में क्या होता है, डायरेक्टर्स के लिए टू क्लेम बेसिकली रेंट फ्री अकोमोडेशन सर्विसेज, मैनी ऑफ द फ्लैट्स हैज बीन रेंटेड आउट टू द कंपनी इटसेल्फ, तो वो सारे के सारे, और उनका पर्पस रेजिडेंशियल यूज होता है बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो सारा का सारा इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, दो इट इज यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। नाउ इसमें अगर एक क्वेश्चन अंकित जी प्लीज। वर्ड यूज कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी, सपोज मैं किसी को अपना रेजिडेंस रेंट पे दिया बट ही इज डूइंग ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड ही इज रजिस्टर्ड बट ही इज यूजिंग इट फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पसेस। सर बट जो रेंट एग्रीमेंट बनाया है वो मतलब किस मतलब रेजिडेंशियल जो रेंट एग्रीमेंट है वो उसकी बिजनेस के नाम पर है या फिर इंडिविजुअल के नाम पर है? प्रोप्राइटर है सर वो, तो उसका तो प्रोप्राइटर में तो बिजनेस इसमें ये इसमें एक और भी क्वेरी है, राजेश जी की क्वेरी है और एक और अच्छी क्वेरी है जो मैं चैट बॉक्स में सामने वाले को क्वेरी है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जी, रेजिडेंशियल हाउस गिवन टू अ सर्विस प्रोवाइडर और अ प्रोफेशनल। मैंने एक रेंट पे घर लिया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पर अपने रेजिडेंस के लिए लिया है। सर्टेनली बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन में मैं कवर होता हूं, मैं रजिस्टर्ड भी हूं, बट दैट इज अ सेपरेट कैपेसिटी। जब मैं घर ले रहा हूं अपने रेजिडेंस के लिए, इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज वेरी क्लियर। ये जहां कंपनीज को रेंटिंग हो रही है और जहां
कुछ केसेस में हॉस्टल सर्विस प्रोवाइडर्स को रेंटिंग हो रही है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, उसको विड्रॉ करने के लिए इनकी इंटेंट है। अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ एनी अदर प्रोफेशनल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में घर को रहने के लिए रेंट पे लेता हूं, वहां एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। ये मेरा बड़ा फर्म कन्विक्शन है। हाँ, अगर मैं अपने बिल्कुल। ऑफिस के लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम अलाउड फॉर टेकिंग अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर माय प्रैक्टिस पर्पस, तो वहां टैक्स लगता है, वो पहले भी लगता था, अब भी लगेगा। वो तो बेसिकली रेजिडेंशियल पर्पस था ही नहीं, कमर्शियल हाँ पर्पस जी, में हाँ आता जी, है। हाँ आई जी। थिंक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए इस पे शायद। हाँ जी, बिल्कुल जी, सर, जी, क्लैरिफिकेशन clarification। आएगी, इवन नोटिफाई जब होगा ना सर, तो ये डिटेल में नोटिफाई होगा। और प्लस दूसरी चीज सर, इंटेंशन क्लियर है, जो मैं और सिद्धांत जी बिल्कुल सेम ओपिनियन पर है, कि अगर आप ये बिजनेस एंटिटी खुद रेंट पे ले रही है, मतलब जो कैपेसिटी है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले रहा हूँ, दो आई हैव सेपरेट बिजनेस, सो वो दोनों को मर्ज नहीं कर देंगे। फिर तो तो सारा ही टैक्स हो जाएगा ना, हर कोई बिजनेस कर रहा है, हर हाँ और हाँ लोग बिल्कुल रजिस्टर्ड भी बिल्कुल। हैं, तो वो बिल्कुल। एक क्या कहते हैं, एडवर्स भी हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होगा। दे विल कम अप विद अ क्लैरिफिकेशन, और नोटिफिकेशन इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी कि इस चीज को एड्रेस करेगी, उस पर टैक्स नहीं आ सकता। और सर हम नोटिफिकेशन के बाद दोबारा करेंगे वेबिनार, नॉट एन इशू, हाँ, सब वो क्लैरिफाई जरूरी है करेंगे। सर, जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक दूसरी फोर्थ पॉइंट, होटल अकोमोडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, होटल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा ये। प्लस एक रूम रेंट ऑफ हॉस्पिटल। अब इसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट चार्ज फॉर द रूम। तो इसके अंदर एम्बिग्यूटी को एक लेवल पे यहाँ पे क्लियर कराया, और बाकी नोटिफिकेशन में क्लियर होगी कि जो हॉस्पिटल का बिल है उसके अंदर जो रूम रेंट है, अगर वो 5,000 से ऊपर है तो ये जीएसटी लगना है 5%, अदरवाइज नहीं लगना। और एक्सक्लूडिंग आईसीयू, आईसीयू का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लस टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली गई ट्रेनिंग, कोचिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कहा है जब वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल, टैक्स एग्जेम्पशन रिस्ट्रिक्टेड टू सच सर्विसेज व्हेन सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल। मतलब खाली उनको एग्जेम्पशन रहेगी, बाकी सबको टैक्सेबल कर रहे हैं ये। इसके अंदर एज ऑन द डेट आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्री इसके अंदर एंटर कर गई है टू प्रोवाइड दिस ट्रेनिंग एंड कोचिंग, तो उन सबको टैक्सेबल किया जा रहा है। और जो इंडिविजुअल इनकी ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं विद रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स, मेरे अकॉर्डिंग उनको टैक्स एग्जेम्पशन अभी भी कंटिन्यू रहेगी। सिद्धांत जी, आपका कोई सेम व्यू है, कोई डिफरेंस है इसमें? अंकित जी, काफी अच्छी क्वेरीज हैं चैट बॉक्स में, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जी बेटर प्लीज क्लैरिटी प्लीज आ जाएगी। प्लीज। नोटिफिकेशन, अभी ये प्रेस रिलीज कल ही आई है, कुछ चीजें हमें भी क्लैरिटी की जरूरत है। इसमें पहली क्वेरी है आलोक कुमार जी की, व्हाट अबाउट इफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग रेजिडेंशियल फ्लैट लेट आउट फॉर रेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, वेदर कंपनी हैज टू चार्ज जीएसटी। सर, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास अपना रेजिडेंशियल फ्लैट है और वो लेट आउट कर रही है एक इंडिविजुअल पर्सन को, व्हेन आई एम सेइंग इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक पर्सन को फॉर यूज एज रेजिडेंस, तो वो एग्जेम्पशन कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे जो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो रही है वो टू बिजनेस एंटिटी हो रही है, बाय बिजनेस एंटिटी नहीं हो रही। आई होप बिल्कुल योर क्वेरी इज क्लैरिफाइड। इसके बाद रवि कुमार जी की क्वेरी है, जनरली हॉस्पिटल चार्जेस इन द नेम ऑफ बेड चार्जेस इंस्टेड ऑफ रूम रेंट। वो सर बेड चार्जेस कह लें, कुछ भी कह लें, जो आईसीयू के बाहर जो भी चार्जेस आपसे फॉर द बेड या फॉर रूम लिए जा रहे हैं एक्सीडिंग 5,000, उन पे टैक्स लगेगा। इसमें ट्रीटमेंट पे नहीं लगेगा। जो मेडिसिन आपको मेडिसिन की बिलिंग है या डॉक्टर विजिट चार्जेस की बिलिंग है, इस पे किसी पे टैक्स नहीं लगेगा। बट रूम रेंट या बेड चार्जेस के नाम से जो अमाउंट चार्ज होगा उस पे ये टैक्स लगेगा। वो दोनों सेम ही कंसीडर करे जाएंगे रवि जी, बेड हाँ जी। चार्जेस और रूम रेंट इज वन एंड द सेम थिंग। राइट। इफ रेजिडेंशियल होम गिवन on rent to bank employee and rent paid by bank directly, is it now taxable? 1 AAR in case of LIC recently exempted. सर, अब ये देखना होगा पहली बात कि एग्रीमेंट इन केसेस में बैंक के साथ होता है जनरली, क्योंकि एम्प्लॉय तो चेंज होते रहते हैं, तो एग्रीमेंट बैंक के साथ होता है, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ सकती है। इसी को ट्रिगर कर रही है शायद ये जो एग्जेम्पशन विड्रॉ की गई है, कि आप एक बिजनेस एंटिटी को रेंट पे दे रहे हो घर, विच इज फर्दर यूजिंग इट फॉर रेजिडेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। बिल्कुल सिद्धांत जी, ये जो है ना, ये कवर एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी 100% इसमें, बिकॉज जनरली सर ने लिखा भी है कि ये बैंक के साथ एग्रीमेंट है इनका, तो होगी इसके अंदर। हाँ जी,
generally hospital is exempt for GST registration. Please explain regarding room rent. Sir, हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, सारी सर्विसेज अगर हॉस्पिटल की एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल मेडिकल हेल्थ केयर एग्जेम्प्ट है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह अगर करता है वो हॉस्पिटल, तो वो चीजें टैक्सेबल थी. तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. अब क्योंकि ये रूम रेंट अगर 5,000 रुपीज से ज्यादा चार्ज करेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो इनको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी और टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल कॉम्पोनेंट. ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. ऐसे कोई बहुत ही छोटे आई डोंट थिंक कि कोई हॉस्पिटल अनरजिस्टर्ड होगा, कि कुछ ना कुछ उनका टैक्सेबल कंपोनेंट होता है, या लीगल सर्विसेज लेनी पड़ती है जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है, वहां पे टैक्स देना पड़ता है उन्हें, तो रजिस्ट्रेशन लेना होता है. रजिस्ट्रेशन तो रिवर्स चार्ज इतना वाइड है ना आशीष जी, हाँ कि जी, वो हाँ जी. वो एप्लीकेबल हो ही जाना है. तो बट हाँ, अब तो रूम रेंट अगर 5,000 से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन उन्हें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज लेना ही लेना है. टर्नओवर में एग्जेम्प्ट भी आएगा सारा. सर वेदर गेस्ट हाउस सर्विस बिलो 1,000 विल बी टैक्सेबल. यस सर, गेस्ट हाउस को कवर कर लेंगे ये. होटल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, क्लब, इन, ये एक ही कॉमर्स, जितनी भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जो कि 1,000 से ऊपर चार्ज करती हैं, उन्हीं पे टैक्स था. 1,000 से नीचे एग्जेम्पशन थी, तो ये एक ही एग्जेम्पशन एंट्री के अंडर सब कवर हो जाते थे. गेस्ट हाउस, क्लब, इन और होटल और एनी अदर थिंग बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. तो इस तरीके से वो एग्जेम्पशन की वर्डिंग थी. अब जब ये इसको विड्रॉ कर रहे हैं तो इट हैज टू बी सीन कि किस किस और तरीके के इंस्टीट्यूशन पे विड्रॉ करते हैं. गेस्ट हाउस के केस में विड्रॉ कर लेंगे. अगर होटल को अलाउ टैक्स कर रहे हैं तो गेस्ट हाउस को भी टैक्स करेंगे. मेरा जो क्वेश्चन है वो हॉस्टल इंडस्ट्री पे है, जहाँ पे एक स्टूडेंट को रेंट पे दिया जाता है एक रूम और बिलो 1,000, वहां पे टैक्स नहीं लगता है. अब उसको कैसे ये टैकल करेंगे वो नोटिफिकेशन में ही देखा जाएगा. अश्विन जी रिलीजियस जी प्लीज हाँ जी. आप करिए, आप हाँ जी, हाँ जी, आप ले लें. अश्विन ठक्कर जी हैं. रिलीजियस आश्रम providing room rent to pilgrims on rent up to 1,000, now it is taxable. मेरे अकॉर्डिंग ये तो अलग से कवर है एग्जेम्पशन हाँ, के ये अंदर, अलग से ये होटल के exemption अंदर नहीं आता, तो उसे विड्रॉ करने की बात नहीं करी गई है अश्विन जी. तो ये मेरे अकॉर्डिंग कंटिन्यू होगी. सिद्धांत जी यानी बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू. ये अलग से एंट्री है. Parag ji, still basic exemption of 20 lakh will be available. Yes, Parag ji, it is available, and even for the taxable it is available, as we know very well, and for owner of such residential flat also it is available. But you have to see this 20 lakh is for the aggregate turnover, so you have to look for accordingly. Residential please आप कुछ कह रहे हैं? मैं बस यही ऐड ऑन कर रहा था जो आपने कहा कि एग्रीगेट टर्नओवर जो 20 लाख की लिमिट है उसमें हमें एग्जाम टर्नओवर भी इंक्लूड करना है टू डिसाइड द थ्रेशोल्ड. जी. विक्की कपूर जी, क्वेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज रजिस्टर्ड, वेदर रिवर्स चार्ज और ऑन हैज टू बी रजिस्टर्ड गिवन टू एम्प्लॉय. देखिए सर विक्की जी, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप विद दिस बेसिकली गिविंग टू अ बिजनेस एंटिटी कवर्ड है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इफ यू आर मोर देन 20 लाख एग्रीगेट टर्नओवर. इफ इट इज नॉट 20 लाख तो रिवर्स चार्ज की तो कोई बात नहीं है. हाँ, रिवर्स चार्ज आपको, अगर आप वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल की, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप सब लोगों की नॉलेज में डालना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी एनआरआई से कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल जो कि अभी तक एग्जेम्प्ट थी, जिसपे रिवर्स चार्ज भी एग्जेम्प्ट था, वो किसी कंपनी को मिली है या फिर बिजनेस एंटिटी को मिली है, तो उस पे आरसीएम आएगा विक्की जी. बट इफ इट इज इंडिविजुअल जिसने रेंटिंग करी है प्रॉपर्टी टू द बिजनेस एंटिटी, तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा. आप एग्रीगेट टर्नओवर को कंसिडर करके चलेंगे. गीता मुंजाल जी, मैनी प्रोफेशनल आर गिविंग कंसल्टेंसी फ्रॉम होम देन. गीता जी, गीतू जी, बेसिकली व्हाट इज देयर, दे आर सेइंग कि देखिए आपने, मैं घर पे बैठा हूं और घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है. मेरा मेन पर्पस वो रेजिडेंस यूज करना है. दैट इज इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी. आई एम नॉट रनिंग द ऑफिस फ्रॉम देम देयर. अगर मैं अपना कोई, सपोज मैं XYZ कंपनी है मेरी और मैं उसके नाम पर ही रेंट एग्रीमेंट है और मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ और रेजिडेंशियल हाउस है वो, तो मेरे अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा. तो आपको ये अकॉर्डिंगली लुक फॉर करना पड़ेगा. रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज, विकी जी मेरे अकॉर्डिंग फॉरवर्ड चार्ज है. रिवर्स चार्ज का मैंने केस बताया है, एनआरआई के केस में रिवर्स चार्ज आएगा, बिकॉज ये रिवर्स चार्ज में कवर नहीं है. अभिषेक जैन जी, इन केस ऑफ हॉस्पिटल इफ वी आर चार्जिंग इंश्योरेंस कंपनी फॉर रूम रेंट ऑफ प्राइवेट रूम फॉर 6,000,
but they disallow 1500 out of 6000, then GST will be applicable or not? Abhishek ji, then the basically disallowance is something different. Disallowance is for the individual, but what hospital is charging is 6000 rupees. They will get the money from two ways. One is 4500 from the insurance company and 1500 from the individual. So 6000 is taxable and GST is applicable on the same. सर इसमें बट अगर ये गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट को चार्ज कर रहे हैं 6000, तो उस केस में फिर आप गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करती कि आप पेशेंट से कुछ भी एक भी पैसा ले, तो वो तो एक तरीके से डिसअलाउंस नहीं, अगर देखिए, अगर मैंने नॉर्मल केस बताया, जैसे इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस होते हैं, अगर गवर्नमेंट वाला इंश्योरेंस है तो 6000 में 15000 रुपए 1500 रुपए कम हो गए तो वो नेट 4500 हो गया ना। तो अगर वो 4500 कंसीडरेशन है और वो 5000 से कम है तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन में कवर होगा। बट सर उस केस में सर बिल चेंज करना, क्योंकि बिल देखिए ऑलरेडी वो एक अभिषेक जी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, बिकॉज वो क्रेडिट नोट 1500 का देंगे या वो बिल चेंज तो हो नहीं सकता, तो ये रेट अकॉर्डिंगली प्री डिसाइड करना चाहिए। 4500 का ही बिल होना चाहिए जो कि डिसाइडेड है, तो अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर ये 6000 का चार्ज हो गया फिर 1500 का सीएन जाएगा, तो इट इज एम्बिग्यूटी। बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग एज पर द लॉ इंटेंशन ये आप पे इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ठीक है सर। सिद्धांत जी आप इस पे प्लीज कुछ एड ऑन करेंगे? सिद्धांत जी जो अभी तक डिस्कशन हुआ प्लीज। आपका जो डिस्कशन है ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई बार पॉलिसी में मेंशन होता है कि 10% विल बी डिडक्टेड। अकॉर्डिंग टू मी तो जो चार्ज करेगा वो इनिशियली या तो बिल ही नेट अमाउंट का बने, पर ऐसा होगा नहीं। जो इंश्योरेंस कंपनी को बिल जाएगा वो ग्रॉस अमाउंट का जाएगा और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एज पर पॉलिसी वो डिडक्ट करेगी। तो वहां पे ये अकॉर्डिंग टू मी वो टैक्स लग जाएगा। अगर इस तरीके से मैं अरेंजमेंट करूंगा कि पहले मैं बिल दे रहा हूँ 6000 का और बाद में वो एज अ डिडक्शन मेरे को 4500 दे रही है। हालांकि वो होटल अकोमोडेशन में आपको ध्यान होगा पहले एक डिक्लेयर्ड टैरिफ का कंसेप्ट होता था, उसके बाद उन्होंने उसे नेट अमाउंट चार्ज पे ले आए थे कि जो अमाउंट चार्ज होगी उस पे अकॉर्डिंग टू दैट टैक्स रेट लगेगा। अगर 7500 से कम है तो 12, अदरवाइज 18। तो अगेन आई वुड से कि एक बार जब नोटिफिकेशन आएगी तभी ये क्लैरिटी आएगी। शैलेंद्र गुप्ता जी की क्वेरी है, बिजनेस एंटिटी हैज टू बी रजिस्टर्ड? यस सर, दे हैव स्पेसिफिक रिटन बिजनेस एंटिटी टू बी हैज टू बी रजिस्टर्ड। सुनील सोनी जी, हेलो, आई हैव माय रेजिडेंस फ्लैट टू यूनाइटेड इंश्योरेंस फॉर हिज एम्प्लॉय, वेदर आई हैव टू चार्ज जीएसटी ऑन दैट? सुनील जी, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना है और आपको जीएसटी चार्ज भी करना है। लेट्स सी द नोटिफिकेशन टू कम, मोर क्लैरिफिकेशन विल कम ऑन दैट। मैं थोड़ी सी फास्ट ले रहा हूँ क्वेरी, प्लीज अगर किसी क्लैरिफाई ना हो तो दोबारा मार्क कर दीजिएगा या मुझे स्टॉप कर दीजिएगा, बिकॉज अभी काफी चीजें रह गई हैं हमारी। सीए पारस अग्रवाल जी, सो हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? यस डेफिनेटली हॉस्पिटल, क्योंकि 20 लाख कोई लिमिट नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग सभी हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो रूम रेंट 5000 से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। नाउ अश्विन जी, नाउ हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, या अश्विन जी सेम क्वेरी या ओके? पीजी फैसिलिटी 1000 लिमिट इज एप्लीकेबल, मेरे अकॉर्डिंग कवर कर लिया सिद्धांत जी ने, दिस इज फॉर द हॉस्टल। So let's see, the notification will clarify these things. अश्विन जी की क्वेरी ऑलरेडी कवर अप हो गई है, आई थिंक ये दोबारा रिपीट हो गई है। स्टील प्रोडक्ट्स पर 12 से 18% होगा क्या? गोविंद जी, अभी मुझे इसके अंदर नहीं मिला है, जो हम ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर स्टील प्रोडक्ट्स पे कोई चेंज नहीं मिला है। लेट्स सी द नोटिफिकेशन व्हेन द रेट्स विल बी नोटिफाइड, लेट्स सी इफ एनी चेंजेस आर कमिंग। प्लीज एक्सप्लेन द रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग प्रॉपर्टी। सिद्धांत जी आप प्लीज इसे क्लैरिफाई करेंगे? सर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, रेंटिंग होनी चाहिए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की होनी चाहिए और अल्टीमेट यूज रेजिडेंस का होना चाहिए। आज तक तो अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड थी तो एग्जेम्पशन मिलती थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और द सर्विस रेसिपिएंट, इंडिविजुअल है, बिजनेस एंटिटी है, जो कोई भी है। अब यहाँ पे जो प्रेस रिलीज आई है, इन्होंने ये कहा है कि अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है टू बिजनेस यूनिट, बिजनेस एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में टैक्स लगेगा। अब डिस्कशन ये हो रहा था कि अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में घर रहने के लिए रेंट पे लेता हूं तो क्या उस पर टैक्स लग जाएगा? अकॉर्डिंग टू माय
हम्बल अंडरस्टैंडिंग टैक्स नहीं लगेगा, इस तरीके से नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये जहां पे रेंटिंग कंपनीज को दी जाती है या बैंक्स को दी जाती है, हम इस तरीके के एग्जांपल क्वेरीज में भी देख रहे हैं, जो कि आगे ऐसे अपने एम्प्लॉय को रेंट पे देने के लिए यूज करती है, रेजिडेंस के लिए यूज करती है, वहां पे टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी। तो दैट इज इट। अंकित जी, इफ यू वांट टू ऐड ऑन एनीथिंग। नो बिल्कुल ठीक है सिद्धांत जी। अभी मैं सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, क्वेरीज हम एंड में लेंगे, बिकॉज अभी Right. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस डिस्कशन के अंदर जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव फॉरवर्ड करते हैं कि स्टील वाली क्वेरी पेंडिंग रह गई है सर, इसे अभी क्लैरिफाई करते हैं। स्टील का मेरे को भी कहीं नहीं मिला है अभी तक। मुझे कहीं नहीं मिला है, बट आप लेडल कह रहे हैं, तो लेट्स सी द नोटिफिकेशन विल कम सर फॉर द रेट। वी आर बेसिकली, दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन एंड अकॉर्डिंगली we see when where is the ladle. I have to check it out. I am not found. Yeah, ladle is there in second point. Forks, ladles, skimmers, ladle, these are basically, I think, related to the basically cutlery. So these cutleries rate has been changed from 12% to 18%, and other than that steel तो already शायद 18% था, तो उसमें तो कोई changes नहीं है। या ladle is there, ladle में change है। क्या है, स्टील यूटेंसिल्स पे शायद इन्वर्टेड रेटेड है, वो स्टील यूटेंसिल्स 12% पे टैक्सेबल होते हैं और इनपुट 18% पे टैक्सेबल है, तो इन्वर्टेड रेटेड बनता है, तो शायद उनकी क्वेरी उससे रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, ये कटलरी को खत्म कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग, जो लुक जी। फॉर हो रहा है। लेट्स सी इन द नोटिफिकेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिद्धांत जी ये ई पॉइंट मैं ले लेता हूँ, फिर E2 आप ले लीजिएगा। जी ठीक है। ई पॉइंट में बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक क्लैरिफिकेशन दी है उन्होंने कि वो वेदर इट इज फिटेड विद बैटरी पैक और नॉट, द कंसेशन रेट इज देयर एट द रेट 5%। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर जो लोग डील करते हैं उन्हें पता होगा, देयर इज अ रेट स्पेसिफिक टू द 90%, ये होना चाहिए। अगर फ्लाई कंटेंट है तो ये रेट होगा, तो उस पे क्लैरिफाई कर दिया है, वो ये खत्म कर रहे हैं बाइफर्केशन को। तो फ्लाई ऐश जो टैक्सेबल होगी वो सिंगल रेट पे टैक्सेबल होगी। एक नापा स्टोन्स इवन दे आर रेडी टू यूज एंड विद अ माइनर बेस एट ए कंसेशनल रेट, उस पे भी क्लैरिफिकेशन है कि 5% का रेट लगेगा। मैंगो पल्प, नॉट मैंगो, मैंगो पल्प के ऊपर क्लैरिफाई करा है कि उसका रेट 12% है। एंट्री अमेंड करी जाएगी, क्लियर की जाएगी, और ये क्लैरिफाई भी करा गया है कि रो और फ्रेश मैंगो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। एक सीवरेज ट्रीटेड वाटर को प्योरिफाइड के अंदर कवर करेंगे नहीं करेंगे, उसे क्लैरिफाई करा गया ये वो कवर नहीं होगा, बिकॉज प्योरिफाइड वाटर इज टैक्सेबल, but other than that water is not taxable, so it has been clarified through this. Nicotine polymax gum attract GST at the rate 18%, this is also a clarification with regard to GST rate. Fly ash में already बता चुका हूं, जो fly ash है उसके अंदर बेसिकली जो एम्बिग्यूटी थी 90% फ्लाई ऐश में ये रेट होगा, तो वो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, उसे खत्म कर दिया गया। नाउ सिद्धांत जी आप E2 प्लीज ले लीजिए। जी सर, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कई सारी क्लैरिफिकेशंस हैं और काफी अच्छी क्लैरिफिकेशंस हैं, अप्रिशिएबल हैं। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू आइसक्रीम पार्लर। सेशन स्टार्ट होने से पहले शायद एक सज्जन थे जो कि उनकी क्वेरी भी थी इस पे रिलेटेड। देखिए, आइसक्रीम पार्लर्स पे 5 अक्टूबर 2021 को एक क्लैरिफिकेशन आया जहां पे उन्होंने ये कहा कि दे विल नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद रेस्टोरेंट आउटलेट्स, जो आइसक्रीम पार्लर्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को सेल कर रहे हैं। इवन दो सर्टेन एलिमेंट ऑफ सर्विस कैन बी देयर, कि वो सर्व कर सकते हैं उसे या उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, संडे बना सकते हैं उसकी, बट दे विल बी ट्रीटेड एज सप्लायर ऑफ गुड्स ओनली, और जो टैक्स लगेगा वो एप्लीकेबल रेट लगेगा विच इज 18% एंड आईटीसी मिलेगा। अब क्या होता है कि जिस दिन ये क्लैरिफिकेशन आई उसके नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही प्रोमिनेंट आइसक्रीम पार्लर्स पे डिपार्टमेंट ने सर्वे करना शुरू कर दिया और हरास करना शुरू किया कि आपने आज तक जो टैक्स 13% नहीं दिया उसको जमा कराएं, और आईटीसी आपने लिया नहीं है, वो आपने नहीं लिया, टाइम लिमिटेशन खत्म हो गई, हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। तो ऑलरेडी एक बड़ी लिटिगेशन तैयार हो रही थी आगे तक के लिए, बट काउंसिल ने उसको कंसिडर किया है, एक्नॉलेज किया है, और काउंसिल ने ये कहा है उन आइसक्रीम पार्लर ने जो 5% टैक्स दिया है उसको रेगुलराइज करते हैं और इस पे कोई लिटिगेशन नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक ज्ञानीज या बास्किन रॉबिन्स,
ये जो आइसक्रीम अपने पार्लर में ला रहे हैं सारी फ्रेंचाइजीज है, मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम आ रही है इनको किचन से, जो कि ये परचेज कर रहे हैं और फिर अपने आउटलेट से सेल कर रहे हैं। तो जो मिक्सिंग करते हैं ये आइसक्रीम्स की, मल्टीपल आइसक्रीम्स की, मैंने अभी क्योंकि उनकी क्वेरी थी सेशन स्टार्ट होने से पहले, मेरे ख्याल से शायद मनीष जी नाम था उनका, तो वहां पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आइसक्रीम अगर प्राइमरी आइसक्रीम पार्लर है जैसे ज्ञानी बास्किन रॉबिन्स और मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को सेल कर रहे हैं, वहां पे 18% टैक्स लगेगा विद आईटीसी, जो सर्कुलर की इंटेंट है। एप्लीकेशन फी, देन सेकंड क्लैरिफिकेशन इज आल्सो वेलकम वन, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एग्जेम्पशन है व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन अराइज होता था कि जब स्टूडेंट की एंट्रेंस के लिए कोई फी चार्ज हो रही है या जब वो एग्जिट हो रहा है, माइग्रेशन फी चार्ज हो रही है दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो तब वो स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑलरेडी ये लिटिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी जीएसटी में, तो वहां पे ये एग्जेम्पशन कंटिन्यू रहेगी, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, वो स्टूडेंट माना जाएगा एंट्री के टाइम पे भी और एग्जिट के टाइम पे भी। देन गिंड और बेल्ड फाइबर इज कवर्ड अंडर एंट्री 24B। यहाँ पे किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो वो डिस्कस कर लेंगे, आई डोंट थिंक इट इज मच हैविंग मच इम्प्लीकेशन। ट्रांजिट कार्गो की एग्जेम्पशन अवेलेबल है, अगर कोई ट्रांजिट कार्गो की सर्विस देता है बिटवीन नेपाल एंड भूटान तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। देन जो एक इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, पीएलसी की सर्विस, जब फ्लैट सेल होता है तो पीएलसी पे रेट वही लगेगा जो फ्लैट की सेल पे लगेगा। ये सर्कुलर पहले भी आ चुका है जीएसटी में, सर्विस टैक्स में बहुत बड़ी लिटिगेशन थी इस पे। अब उन्होंने लीजिंग के केस में, अगर आप प्लॉट को लीज कर रहे हैं और उसकी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस उस पर चार्ज हो रहे हैं, तो पीएलसी पे वही रेट लगेगा जो लीज पे लगेगा। बेसिकली अगर हम बात करें नोएडा उत्तर प्रदेश में, तो मेजरली दीज आर नॉट अ फ्री होलसेल, दीज आर लीज होलसेल। तो ये क्लैरिफिकेशंस दे दी गई और मेरा ये मानना है ये बड़ी वेलकम है सिद्धांत जी। बहुत सारी एम्बिग्यूटी रियल एस्टेट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स में कवर अप करी है इन्होंने। तो पीएलसी के ऊपर अब जीएसटी आपको जैसे नॉर्मल देते थे 5% है तो 5% देना है, ये क्लैरिफाइड है जी। नेक्स्ट केस जो है, जैसे कि अंकित जी ने कहा, रियल एस्टेट सेक्टर में प्लॉटिंग पे कई सारी एडवांस रूलिंग्स आई, डाइवर्जेंट व्यूज हैं कि प्लॉटिंग पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। मैं एक पीस ऑफ लैंड को सेल करता हूँ, शेड्यूल 3 में कवर्ड है, बट क्वेश्चन ये आता था, हमने शायद लास्ट जो सेमिनार लिया उसमें भी ये क्वेश्चन था, शायद अश्विन ठक्कर जी का ही था, कि भाई उसमें जो बेसिक लेवलिंग करी या एमिनिटीज प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस हमने प्रोवाइड कराई, कॉमन एमिनिटीज, तो उस पे क्या होगा। वहां काउंसिल ने उसको डिसाइड किया है कि ये सेल ऑफ लैंड ही है, जो हमारा व्यू था उस दिन भी, और इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्लॉटिंग को कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, सेल ऑफ प्लॉट पे टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज वेरी वेलकम मूव, वेरी वेलकम मूव, वेरी वेलकम हो गया। एंड आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी थी। मेरे पास ही 3 क्वेरी पेंडिंग थी सिद्धांत जी, और लोगों को हम बोल रहे थे कि जीएसटी नहीं देना, वी आर गिविंग द ओपिनियन जीएसटी नहीं देना, बट ऑल आर अफ्रेड की मतलब आज हम जीएसटी नहीं दें जी, कल को अगर चार्ज कर लेगा डिपार्टमेंट तो हम लैंड को अलग कर देते हैं जी, ये चार्जेस तो ले लेते हैं जी। अभी तो कस्टमर दे देगा। हाँ, गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आई, वो बोलने लगे कि जी लैंड को अलग कर देते हैं, बिल्कुल इसके चार्जेस अलग से ले लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेलकम मूव एंड आई से थैंक्स टू द जीएसटी काउंसिल टू क्लैरिफाई दिस इशू वेरी वेल। प्लीज सिद्धांत जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देन एक बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर के लिए आईवीएफ जो सर्विस है उसको हेल्थ केयर में ये कन्वर्ट करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो सर्विस है, they will treat it as healthcare service only, it will remain exempt. Then एक query meanwhile आई है सीए मनीष बंसल जी की, please explain point number 5, activity of selling of space for advertisement in print media पे 5% टैक्स था, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देंगे तो उस पे 18% था। अब उसमें इन्होंने प्रिंट मीडिया में एक और लाइन आइटम जोड़ दिया कि अगर कोई सुवेनियर में आप एडवर्टीजमेंट देते हो जो कि एज अ प्रिंटेड बुक दिया जाता है, तो वहां पे भी टैक्स 5% ही लगेगा। अंकित जी, अगर ऐसा कोई एग्जांपल दे पाए, सुवेनियर पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक। बेसिकली जो बुक फॉर्म में एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जैसे मैगजीन्स वगैरह में जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, आई थिंक वो सब कवर अप कर रहे हैं, उन्हें भी कंसेशनल रेट 5% में ही डाला जा रहा है।
ये बुक्स वाला तो ना पहले ही 5% पे था, प्रिंटेड मीडिया वाला। अब इन्होंने ये इसमें मेरा- सोविनियर्स का कुछ नया ऐड किया है, बट अभी नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई होगा, बिकॉज स्पेस फॉर सर्कुलर से एडवर्टाइजमेंट क्लैरिफाई इज होगा जी। पब्लिश्ड इन फॉर्म ऑफ बुक्स। तो हम सर, इसमें स्पेसिफिक मेरा आपको कंसर्न क्लैरिफाई ये कर है, देंगे। इसमें अभी से मेरा कंसर्न ये है, जैसे ये ट्रस्ट होती हैं तो वो अपनी बुक्स को पब्लिश करते हैं और उस पे एडवर्टाइजमेंट्स भी प्रिंट होती है, जी क्या ये उसी के कंटेक्स्ट में हाँ पॉइंट जी, आया हाँ जी है? सर, वही प्रिंटेड, वो जो आपका केस है ना, वो प्रिंटेड मीडिया ऑलरेडी 5% पे ही टैक्सेबल है। अगर मैं मैगजीन या जिस तरीके जो आप बुक्स कह रहे हैं, अगर उनपे कोई एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस सेल करता हूं तो दैट इज ऑलरेडी 5%। नहीं सर, यहाँ मेरा पे कंसर्न इन्होंने है कुछ जैसे सोविनियर्स को मंदिर ट्रस्ट होती हैं तो वो भी क्या करते हैं, जैसे अपनी मैगजीन्स हर मंथ पब्लिश करते हैं और उसमें फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए स्पेस सेल करता है, तो ये बेसिकली उसी के कंटेक्स्ट में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसपे 5% टैक्स रेट रहेगा। ओके, थैंक यू। ये क्लैरिफिकेशन ही है ना, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बेसिकली क्लैरिफिकेशन है कि वो यहाँ पे जो आपकी जैसे क्वेरी है, आपके जो ट्रस्ट है और वहां पे मैगजीन पब्लिश हो रही है, तो वहां पे 5% टैक्स लगेगा सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट पे। देन देयर इज अ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है और पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानेंगे, और वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल है, तो एग्जेम्पशन में एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। देन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये आरसीएम में टैक्सेबल रहेगा। अभी तक की जो आरसीएम में जो एंट्री है वो ये है कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है और 12% पे टैक्स चार्ज करता है, या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो फॉरवर्ड चार्ज में 12% पे टैक्स चार्ज करता है टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो अवेलेबल है। बट अब इन्होंने बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एनी सर्विस प्रोवाइडर हु इज प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट को 12% पे टैक्स देना होगा। ये जब नोटिफिकेशन आएगी तब क्लैरिटी आएगी कि बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट क्या फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा या वो भी रिवर्स चार्ज में हो जाएगा। देन सम अदर मिसलेनियस। सर एक बार दीजिए। हाँ जी अंकुर जी, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ। अंकुर जी सर मैं बोल रहा था था। एंट्री नंबर 13 को एक बार रिपीट कर दीजिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन है कि पहले क्या था और अब क्या है, वो अगर आप क्लैरिफाई कर सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें से एक पार्ट आज भी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो क्रेडिट नहीं लेता और 5% का टैक्स रेट ऑप्ट करता है, तो कम बॉडी कॉर्पोरेट 5% रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 12% में फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स पे करे और क्रेडिट ले ले अपनी गाड़ियों का। आप समझ रहे हैं, दो एस्पेक्ट है, दो ऑप्शन है। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट को, तो या तो मैं 5% रिवर्स चार्ज में टैक्स मेरा रेसिपिएंट देगा और मैं कोई क्रेडिट नहीं लूंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं क्रेडिट लूंगा पर 12% की बिलिंग करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पे था, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि टू अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली अगर आपने मंथली रेंटल पे दे दी तो वहां पे रिवर्स चार्ज में टैक्स लग जाएगा। ये नोटिफिकेशन आएगी तब क्लैरिटी आएगी। अंकित जी, अगर आप इसमें मीनवाइल कुछ ऐड अपॉन कर नहीं, पाए। ये बेसिकली देखिए सिंपल है, इसमें नोटिफाई हो जाएगा। इसके अंदर जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है टू बॉडी कॉर्पोरेट पीरियड टाइम बेसिस पे, मतलब इट इज नॉट अ रेंट अ कैब, तो ये इन्होंने अदर देन रेंट अ कैब को भी आरसीएम में कवर कर दिया है। मतलब जैसे एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है आपके जैसे सामने? बस प्रोवाइडर है, हम मेरे पास है, मैं शेयर कर देता हूँ, दीजिए जस्ट अ मिनट। मेरी व्यू हो रही है स्क्रीन? अंकित जी नहीं, आपने ऑलरेडी स्क्रीन व्यू कर रखी हाँ है। जी, हाँ जी, एक मिनट दीजिएगा प्लीज, जस्ट अ मिनट। सिद्धांत जी, ये नोटिफिकेशन है एंड इसके अंदर अगर हम चलते हैं, एक पार्ट आरसीएम में ऑलरेडी है कवर्ड।
आप सही बोल रहे हो, उसमें वही है नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को ऐसी There are सर्विसेज दे service रहा है provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passenger, where the cost of fuel is included in consideration charge from the service recipient provided to a body corporate. Any तो person ये- other than a body corporate who अगर वो supplies जो 6% वाला था ना, जो सिद्धांत जी आप कह ही रहे थे, तो वो ये हटा दिया गया है। अब ये कह रहे सारा कुछ कवर है जी। हाँ, शायद वो एम्बिग्विटी खत्म कर रहे हैं कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दोगे तो बॉडी कॉर्पोरेट से टैक्स लेंगे। हाँ, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जी, बस प्रोवाइडर है, वो सब है, तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, तो दैट इज द इशू आल्सो। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी और भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड अंकित जी पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं जो जी हमारे जी पहले अभी- वही कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक सो दैट हाँ। इज मोर इम्पोर्टेंट। जस्ट एक मैं आप जब तक शेयर कर रहे हैं मैं कर लेता हूँ डिस्कस। प्लीज आप जीटीए में आता था कि फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्शन था 12% विद क्रेडिट का, और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट मेरा टैक्स पे करता था 5%। अब ये जीटीए को एक और ऑप्शन देने जा रहे हैं जहां पे वो फॉरवर्ड चार्ज में 5% विदाउट आईटीसी अपने कस्टमर से चार्ज कर सकता है। सो इट इज एन एडिशनल ऑप्शन, एडिशनल फैसिलिटी, दैट इज इट। आरसीएम ऑप्शन कंटिन्यू। और इसमें एक चीज और है सर, मेरे पास अभी एक क्वेरी आई कि सर अब हमने मिड के अंदर क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? एक बंदे ने जीटीए ने बीच में ट्रक ले लिया, तो अब उसका मन करता है कि मैं आईटीसी लेके 12% चार्ज करना चालू कर देता हूँ। तो ये भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ही आपको ऑप्शन ऑप्ट करना है, आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं या रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं। बट नोटिफिकेशन आने से पहले आप स्विच ऑन कर सकते हैं, ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर। तो पहले जीटी के पास 12% और 5% दोनों ऑप्शन हुआ करते थे ना, या नहीं होते थे? नहीं नहीं हाँ जी, सर, 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज, 5% अंडर आरसीएम, यही 2 ऑप्शन थे। बिल्कुल। अब ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज में एक और आ गया 5% का। पहले Without 5% ITC अंडर फॉरवर्ड चार्ज नहीं था। हाँ, समझ गया, विदाउट आईटीसी है, बट जीटी के पास हाँ जी, 5% हाँ ऑप्शन। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बट है, ऑब्वियस। ठीक है। सिद्धांत जी आगे चलते हैं। ये हमने हाँ। पहले ही बता दिया था कि 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है, तो अभी मतलब कल से ही एप्लीकेबल नहीं है। मैंने जैसा कहा था कि नोटिफिकेशन आएगी तभी एप्लीकेबल होंगे। एंड वेरी वेलकम मूव है ये 2। मैं चाहूंगा ईसीओ वाला सिद्धांत जी आप लें, रिफंड वाला मैं लेता हूं सेकंड पॉइंट प्लीज। सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में अगर मैं एज अ सप्लायर ऑफ गुड सप्लाई करता था तो मेरे ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी इररिस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर। अब उन्होंने ये कह दिया कि जो सेक्शन 22 में एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड है, अगर आप मेट्रो सिटीज में है तो वो 40 लाख है, और अगर आप अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है तो वो 20 लाख है। तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख एज द केस में भी तक का है और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। जो पहले मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी कि 1 रुपए के टर्नओवर पे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के टैक्स देना पड़ेगा अगर मैं सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर करता हूं, तो अब वो इन्होंने टर्नओवर की लिमिट बना दी है कि अगर 20 लाख 40 लाख तक का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंकित जी। हाँ जी, एक वो कंपोजिशन वाले को भी अलाउ कर दिया ना इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। कंपोजिशन को अलाउड नहीं था टू डू द सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। नाउ दे आर अलाउइंग इट आल्सो, एंड these are basically they are making the just discussion is going on. This has not been allowed. They are saying कि हम 1/1/2023 तक डिसाइड करेंगे ये सबको। इन दोनों ही पॉइंट्स में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंट्रा स्टेट ही है केवल। हाँ, अगर आप हाँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन के थ्रू एक डीलर सेल करना चाहता है अपने गुड्स और रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहता, उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट तक का नहीं है, तो वो विद इन द स्टेट ही सेल कर सकता है, आउटसाइड द स्टेट नहीं सेल कर सकता। ये उसे बिल्कुल, डिसिप्लिन मेंटेन बिल्कुल। करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मूव है 89(5), जिसके अंदर आपको पता होगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के केस में गवर्नमेंट इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट अलाउ नहीं करती थी। एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर कहा गया कि इनपुट सर्विसेज का रिफंड भी मिलना चाहिए, तो वो एम्बिग्यूटी को गवर्नमेंट ने खत्म किया और यहाँ क्लैरिफाई किया कि भाई इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी में क्लेम कर सकते हैं, बट उसका फॉर्मूला लेट्स सी विद द नोटिफिकेशन टू कम। They have said कि that should be in the proportionate input और input services का proportionate with regard to the ITC availed on input services होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये जब नोटिफाई होगा तभी क्लैरिफाई होगा
कि क्या गवर्नमेंट देना चाह रही है, बट इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि इनपुट सर्विसेज का इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर रिफंड मिलेगा। वो किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, लेट्स सी हाउ दिस हैज बीन ड्राइव्ड। अभी तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मुलाइज भी करके देखा तो कोई हमें डिफरेंस नजर नहीं आया। नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट with regard to the risky exporter, as you are aware who is dealing with the refund, कि जब आप रिफंड क्लेम करते हैं with the payment of IGST तो आपके रिफंड होल्ड हो जाते हैं क्लाइंट्स के, बिकॉज वो रिस्की एक्सपोर्टर में मार्क है ड्यू टू द फ्रॉम द कस्टम और जीएसटी डिपार्टमेंट, और जिसकी वजह से रिफंड्स काफी सारे होल्ड पर हैं। तो गवर्नमेंट ने बड़ा वेलकम मूव ये किया, क्लैरिफिकेशन के द्वारा रूल में चेंज भी करेंगे। नाउ इसके लिए RFD 01 फाइल होगा, और रिस्की एक्सपोर्टर्स से आपको हटाने का जो प्रोसीजर है, जो नोटिफिकेशन है, वो डिफरेंटली चलेगी। आप रिफंड RFD 01 के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। वेरी वेलकम मूव, क्योंकि 2-3 केस तो मेरे पास ही है जिसके अंदर से रिफंड फंसे हुए हैं। और रिस्की एक्सपोर्टर मार्किंग आपको पता होगा, 3 साल पहले जिसने भी रिफंड लिया मेजरली वो रिस्की एक्सपोर्टर मार्क कर दिया गया, और उसे हटाना इज वेरी टफ टास्क नाउ, बट गवर्नमेंट हैज गिवन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप RFD 01 फाइल करें अपने ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर के पास, और अकॉर्डिंगली आप रिफंड उसका क्लेम कर लें। नाउ सिद्धांत जी आप प्लीज 4th और 5th पॉइंट ले लीजिए। सर ये भी बहुत अच्छा एक इन्होंने स्टेप लिया है। रूल 9610 में एक रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर मैं एडवांस ऑथराइज लाइसेंस पे या किसी भी कंसेशनल रेट पे अंडर नोटिफिकेशन 48, 47, 0.01% पे मैं गुड्स परचेज करता था मर्चेंट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता विदाउट पेमेंट, विद पेमेंट ऑफ टैक्स। मेरे को वो LUT में ही एक्सपोर्ट करना होता था अगर मैं गुड्स को एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस पे प्रोक्योर करके लाया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इनिशियली ये बात ना तो प्रोमिनेंटली असेसी को पता थी ना डिपार्टमेंट को पता थी, और रिफंड्स निकल आए कस्टम से। ऐसे एक असेसी ने जिसने गुड्स को कंसेशनल रेट पे प्रोक्योर किया उसे एक्सपोर्ट कर दिया विद पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि 9610 में बार्ड था, और उसे कस्टम्स ने रिफंड भी दे दिया ऑटोमेटिकली। तो अब उन केसेस में डिपार्टमेंट आज की डेट में जब वो समझ गए लॉ को, तो वो वहां पे सर्वे के लिए आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इस रिफंड को वापस दो अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। एक बार को असेसी मान भी जाता है कि भाई ठीक है गलत रिफंड है, मैं उसको वापस कर देता हूं, पर वो ये कहता है कि ये जो मैंने टैक्स पे किया था थ्रू क्रेडिट, इसका क्या, ये तो मुझे वापस दो। तो पीपल हैड बीन अप्रोचिंग हाई कोर्ट अर्लियर, और उनको हाई कोर्ट ने अलाउ किया था। अब काउंसिल ने ही इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जिन केसेस में असेसी इज रिटर्निंग यू द रिफंड अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, आप उसको क्रेडिट रिक्रेडिट करो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्योंकि एज अ एक्सपोर्ट टैक्स इंप्लीकेशन विल ऑलवेज बी निल। तो वो आपके क्रेडिट जो आपने यूटिलाइज किया था उसको वापस कर देंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। बड़े लिमिटेड केसेस में ये एप्लीकेबल है, बट एक वेलकम मूव है फ्रॉम द काउंसिल। जो लोग इसको डील कर चुके होंगे इस तरीके के केसेस को, वो अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवन वो भी केस है, उसके अलावा भी जो रिफंड अदर देन दैट भी बहुत सारे रिफंड रॉन्ग क्लेम हुए हैं, क्योंकि रिफंड की एक कंडीशन नहीं है, रिफंड्स की बहुत सारी कंडीशन है। इफ यू वांट टू क्लेम अ रिफंड अंडर द एक्सपोर्ट, तो जो भी रिफंड गलत पाया जाएगा 9610 तो है ही है, उसके अलावा आपको रिक्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, लॉजिकल है वो। डबल टैक्सेशन तो कहीं भी टैक्सेशन लॉ के अंदर अलाउड नहीं है। सो दिस इज द वेलकम मूव। सिद्धांत जी प्लीज 5th पॉइंट। यस, देन दे हैव सेड कि हम अभी जो फाइनेंस एक्ट 2022 में एक अच्छा अमेंडमेंट आया कि क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड पे ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने क्रेडिट अवेल कर लिया, अपने क्रेडिट लेजर में पार्क कर लिया, बट विदाउट यूटिलाइजिंग इट, उसको बाद में रिवर्स कर दिया आफ्टर नोइंग कि ये मैंने गलत लिया था, तो उस पे फाइनेंस एक्ट 2022 ने ये कहा कि हम इस पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 हैज बीन अमेंडेड। बट जीएसटी में क्या है कि लॉ को प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद भी वो इनफोर्स नहीं आता, काउंसिल को एक डेट नोटिफाई करनी होती है, फ्रॉम दैट डेट द प्रोविजन गेट्स इनफोर्स। तो ये इनका ये रिकमेंडेशन है कि इस प्रोविजन को जल्द से जल्द इनफोर्स लाया जाए, ताकि डिपार्टमेंट इस तरीके से रिकवरी ना कर पाए इंटरेस्ट की ऑन क्रेडिट अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड। ऐसे ही एक और केस में सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में, जहां पे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है वो विद इन दैट जीएसटी आए, तो आज की डेट में भी आप उसे मूव कर सकते हैं फ्रॉम C to S, S to I, बट टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन। आपके पैन के अंडर एक और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है विद इन द सेम स्टेट या इन अ डिफरेंट स्टेट,
तो उस कैश लेजर, एक जीएसटीआई में जो कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको दूसरे जीएसटीआई में अगर रिक्वायरमेंट आ रही है तो वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रोविजन को भी ये जल्द से जल्द नोटिफाई करेंगे। Now moving forward to 6 point, ये किसी का प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रही है प्लीज। Waiver of late fee for सचिन जी म्यूट कर लें अपने माइक को। हाँ जी। बेसिकली नाउ लेट फीस आपको पता होगा, जो कंपोजिशन डीलर है उनका जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है और सीएमपी 08 फाइल करना होता है। आपको पता ही है, एक नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये अटके हुए हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने काउंसिल ने जीएसटी डेट को एक्सटेंड करने के लिए रिकमेंडेशन दी है, दैट इज की 28 जुलाई तक आपका जीएसटीआर 4 फॉर 21-22 की एक्सटेंशन की बात करी गई है, और सीएमपी 08 फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2022-23 वो 31 जुलाई तक के लिए डेट एक्सटेंड करने की बात करी गई है। और प्लस कहा गया है जीएसटीएन को कि रिजॉल्व करे नेगेटिव बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाले इशू को एट द अर्लीएस्ट। सिद्धांत जी प्लीज प्रेजेंट एग्जेम्पशन ऑन ये एक क्लैरिफिकेशन है। ये टाइम बाउंड एग्जेम्पशन थी, इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अगर कोई ईओयू गुड्स को इंपोर्ट करती है, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करती है, या एडवांस ऑथराइजेशन के अंडर कोई एक्सपोर्टर अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है, या कैपिटल गुड्स को अंडर ईपीसीजी लाइसेंस इंपोर्ट करता है, तो बीसीडी तो एग्जेम्प्ट है ही, बट आईजीएसटी टाइम बाउंड एग्जेम्पशन दे रखी थी और उसको इन्होंने कंटिन्यू करने के लिए रिकमेंड किया है। दैट विल बी एक्सटेंडेड टिल अनदर ईयर, और ई वॉलेट स्कीम को अभी नहीं लाएंगे। Then 8th number is issuance of following circulars in order to remove ambiguity. यहाँ पे इन्होंने supplier is supplying goods under some concession, इसमें अभी इन्होंने सर्कुलर्स इशू करने के लिए कहा है, बट फ्रॉम द प्रेस रिलीज इट इज नॉट क्लियर कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक फेक इनवॉइसिंग के केस में उन्होंने डिमांड पेनल्टी को के लिए एक क्लैरिफिकेशन लाने को कहा है। दैट वुड बी वेरी वेलकम टू सी। इसी तरीके से इंटरस्टेट सप्लाईज और ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो एज असेसी में 3B में 17.5 की ब्लॉक क्रेडिट्स को रिपोर्ट नहीं करता हूं, उसका कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी नहीं है, बट उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन होना एक्सपेक्टेड है। दे हैव सेड दैट यू विल हैव टू रिपोर्ट इट। देन क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। Yes, clarification on utilization of the amount available in electronic credit ledger and cash ledger for payment of tax and other liabilities. ये अभी इसमें प्रेस रिलीज से निकल के नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। They have just said that we will give clarification in the due course on these issues. बेसिकली क्या है सिद्धांत जी, ये वही है, उन्होंने कहा कि क्लैरिफिकेशन दी जाए, तो लेट्स सी व्हेन द क्लैरिफिकेशन विल कम ऑन ऑल दीस टॉपिक्स। दीस आर द टॉपिक्स इसमें एक जो देखने वाला होगा वो परक्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेक इनवॉइस वाला होना चाहिए। हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन वाला, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो आज अगर कोई डिमांड निकलती है और यूटिलाइज कर लेता है बंदा फॉर रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो लेट्स सी फॉर द क्लैरिफिकेशन टू कम क्या होता है। 9th पार्ट में 10th नंबर पॉइंट, हाँ जी 10th नंबर पॉइंट बड़ा अच्छा 9th पार्ट वैसे तो क्लैरिफिकेशन ये सबको पता ही है, अभी फॉर्म भी इन्होंने चालू नहीं करा है, बट उन्होंने कह दिया कि 2 करोड़ तक कोई जरूरत नहीं है 9 और 9A फाइल करने की। एंड 10th पॉइंट सिद्धांत जी बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने जैसा कहा कि ड्यूटी स्क्रिप्ट्स के ऊपर भी हम लोग रूल 42-43 की बात करते थे, बिकॉज इट इज एग्जाम, इट इज निल रेटेड, सो दे हैव क्लैरिफाइड कि 43(1) के अंदर एक्सप्लेनेशन में से ऐड कर देते हैं और ये अकॉर्डिंगली इस पर रिवर्सल नहीं करना है। कॉमन क्रेडिट की रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी इन केस ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। सिद्धांत जी आप बाकी की प्लीज। Then they have added UPIS, IMPS as mode of payment, वो ऐसा कुछ खास नहीं है। Then export of electricity के लिए they will provide a separate rule। ये मैं नहीं समझ पाया कि ऑलरेडी अगर एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो रूल 89(4) इन्हें रिफंड इंटाइटल करता है। अब ये क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं, we will have to see। ये ना एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कुछ एम्बिग्यूटी वाला मैटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो के इनपुट पे एम्बिग्यूटी मैटर है। हाँ, तो वो सेस का इशू आ सकता है। हाँ, तो वो इशू को माइट भी इसके थ्रू ये कवर अप कर रहे हैं। राइट।
एक जो सप्लाई ऑफ ड्यूटी फ्री शॉप सेपरेटली रूल 95A में कवर्ड थी। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं, T3 पे जाते हैं, तो जो ड्यूटी फ्री शॉप से आप मटेरियल परचेज करते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट है जो आया है इंडिया में और वो शॉप करके बाहर ले जा रहा है, तो ड्यूटी फ्री शॉप्स को उसकी प्रोक्योरमेंट का रिफंड मिलता था जीएसटी इंसिडेंट्स का, उसे एक्सपोर्ट नहीं माना जाता था। बट थ्रू अ सेपरेट रूल वो जीएसटी इंप्लीकेशन को नलिफाई कर देते थे फॉर द ड्यूटी फ्री शॉप। इसको इन्होंने अब रैशनलाइज कर दिया है, इसको एक्सपोर्ट मान लिया है। So if a foreign traveler has come to India and while leaving India he is procuring anything from duty free shop, तो ड्यूटी फ्री शॉप जो उस ट्रैवलर को सप्लाई करेगी वो एक्सपोर्ट माना जाएगा और ड्यूटी फ्री शॉप को रिफंड मिल जाएगा अंडर रूल 89(4). देन मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। अगर आप पर्टिकुलर 6 महीने तक अपनी रिटर्न जीएसटीआर 1 और 3 भी नहीं फाइल करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है। या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की केस में ये लिमिट 3 टैक्स पीरियड्स की है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो रेगुलराइज हो जाता है नॉन कंप्लायंस, पर ऑफिसर के पास जाना पड़ता था उसको रिवोक कराने के लिए। ये उन्होंने कहा कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर देगा। देन सेकेंडली टाइम, ये काफी प्रोफेशनल्स को ध्यान रखना है, जो रिफंड टाइम बार हो गए थे उसमें इन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो टाइम लिमिट एक्सटेंड करी फ्रॉम सेइंग दैट कि पीरियड 20th मार्च 2020, और यहाँ पे तो उन्होंने 1 मार्च कर दिया उसे 2020 टिल 20th February 2022, ये जो इन दो डेट्स के बीच में जितना भी पीरियड है इसको टाइम लिमिटेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको 21 मार्च 2022 से टाइम फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो आपकी जो रिफंड 18, 19, 19, 20 के ऐसा हो सकता है जो कि इस पीरियड में टाइम बार हो गए हो, उसके लिए आपको फिर से टाइम मिल गया है और आप रिफंड्स को अप्लाई करें जल्द से जल्द कंसिडरिंग द टाइम लिमिटेशन। देन इन्होंने डिपार्टमेंट को भी इक्वली उस इक्वल फुटिंग पे रखा है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि अगर रिफंड गलत सैंक्शन हो गए हैं तो वहां पे भी जो टाइम लिमिटेशन 73 में है उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं हम इक्वली, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं कवर होगा। और एक चीज जो अच्छी है वो ये डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे 17-18 का पीरियड टाइम बार हो जाता फॉर इशुएंस ऑफ एनी डिमांड, फॉर इन्वोकिंग एनी डिमांड थ्रू शो कॉज नोटिस एंड देन एजुडिकेशन ऑर्डर, ये पीरियड टाइम बार हो जाता 30 जनवरी 2023 को। उसमें डिपार्टमेंट ने इन्हें 9 months और दे दिए और ये 30 सितंबर 2023 तक डिपार्टमेंट उसकी डिमांड इशू कर सकता है, एजुडिकेट कर सकता है। तो इस तरीके से टाइम लिमिटेशन के लिए ये 3rd नंबर पॉइंट है और रिफंड्स वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोफेशनल्स। देन अदर थिंग्स आर वेरी क्लैरिफिकेटरी। काउंसिल हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बहुत टू एड्रेस, ये important- आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ई पॉइंट है, सिद्धांत जी उसे ले लेते हैं। गवर्नमेंट कह हाँ रही है जी। कि जीएसटीएन शुड put हाँ, in place the AI and ML Artificial. based mechanism to verify the incidents of the registered applicant and improved risk based monitoring of their behavior post registration so that non-compliant taxpayer could be identified in their infancy and appropriate action to be taken so as to minimize risks to exchanger। आपने देखा ना, रजिस्ट्रेशन ले लिया, 1 फाइल कर दी, 3 भी फाइल नहीं करी, बंदा गायब हो गया, जो फेक इनवॉइसेस वाले मैटर हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है जीएसटीएन से इसे एआई और एमएल बेस करो और जो भी रिस्की लग रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। तो दिस इज आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मूव कि भाई बाद में जाके चीजें पता चले, तुरंत पता चले और तुरंत उसे कंट्रोल किया जाए। तो इट वुड सेव द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया एंड जो बंदे गलत काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया मूव है। बेसिकली एआई और एमएल बेस जो मैं समझ पा रहा हूँ सिद्धांत जी, वो कहीं ना कहीं ये मॉनिटर करेंगे कि उस रजिस्ट्रेशन को ऑपरेट कौन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या बिहेवियर है, क्या सारा आईटीसी बिहेवियर। से जा रहा है, एचएसएन कौन से हैं, कौन से एचएसएन का आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कौन से का आपका इनपुट आ रहा है। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच दे विल डू। सो दिस इज अ वेरी वेलकम मूव। आई से दिस इज अ गुड थिंग दैट गवर्नमेंट इज डूइंग। मेरा शुरू से मेरा और आई थिंक सभी का मानना यह है कि अगर कोई कमियां हो रही हैं, अगर कोई गलत चीजें हो रही हैं तो उन्हें तुरंत रोक दिया जाए, जिससे कि वो इतनी ना बढ़ जाए जिससे इकोनॉमी भी इफेक्ट हो और पूरी कंट्री इफेक्ट हो। देखिए, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, टैक्स इवेजन के लिए जो सबसे ज्यादा एक चीज डिटरेंट है, वो जो हेल्प करेगी गवर्नमेंट को, दैट इज टेक्नोलॉजी। और उनका मैंने लास्ट सेशन में भी यही कहा था कि इस गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा रिलायंस है
टेक्नोलॉजी पे एंड दे विल डू वॉट एवर पॉसिबल. They have already entered into a, अंकित जी को पता होगा, they have already entered into a pact with IBM where they are building up this, उसका एक नाम भी दिया है उन्होंने, जैसे आपका इनकम टैक्स में AIS है, ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो स्टेटमेंट जो है, इसी तरीके से वो वहां पे भी डेवलप कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, एडवैट कहते हैं शायद उसे. तो IBM के साथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक वेंचर किया हुआ है जहां पे वो पर्टिकुलरली फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, टैक्स इवेजन जैसी प्रैक्टिसेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कब कर सके, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रैक्टिस एक जारी है. एडवाइट इज द नेम ऑफ दैट वेंचर. नहीं, बहुत बहुत अच्छी चीज है सिद्धांत जी. इवन इनकम टैक्स रिटर्न में अगर मैं आज की बात करूं तो AIS और TIS की जो मूवमेंट है, दैट इज अ वेरी गुड. इवन द पर्सन डोंट नो. बहुत सारी इनकम ऐसी होती थी जो बंदे को पता ही नहीं है. HRA इज वन ऑफ द फैक्टर जो मैं कह सकता हूं कि बंदे ने, सामने वाले ने डिडक्शन क्लेम कर ली, दूसरे बंदे ने इनकम ही नहीं दिखाई, गवर्नमेंट पकड़ ही नहीं पाती थी, TDS होता नहीं था. अब वो सब चीजें नहीं बच सकती. तो टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी गुड फैक्टर, और जो गवर्नमेंट कर रही है GST में भी, और हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी किस लेवल तक यूज हो रही है. सिद्धांत जी क्वेरी ले ले. आई थिंक सो. हाँ जी ये सर, व्हेन आई गेस रंजन बंसल की क्वेरी हमें लेनी होगी, रंजन बंसल जी की. अश्विन जी की हो इसके गई. ऊपर की सारी क्वेरीज एड्रेस्ड है. सर आप प्लीज लीजिए सिद्धांत जी GTA वाली. एक तो GTA की क्वेरी ये कई बार आती है. देखिए आज की डेट तक जो प्रोपोजिशन है, अंटिल द नोटिफिकेशन कम्स, GTA के केस में दो ही ऑप्शन है. आइदर GTA टेक्स द क्रेडिट एंड चार्जेस टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एट 12%, फर्स्ट ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये है कि GTA अपने रेसिपिएंट को डायरेक्ट करेगा 5% रिवर्स चार्ज में देने के लिए, और वो अपने इनपुट्स का क्रेडिट नहीं लेगा. तो केवल यही दो ऑप्शन है, 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज विद ITC और 5% अंडर रिवर्स चार्ज विदाउट ITC. अब शायद जो इस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है, दे आर कमिंग अप विद अनदर ऑप्शन ऑफ 5% अंडर फॉरवर्ड चार्ज विदाउट ITC. तो दैट इज द केस GTA के रिस्पेक्ट में. इसके बाद है सर, व्हेन फर्म डिसॉल्व स्टॉक एंड मशीनरी टेकन बाय पार्टनर वेदर GST इज एप्लीकेबल. देखिए डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस के टाइम पे अगर आप कुछ बिजनेस एसेट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो बिजनेस की डेफिनेशन में तो कवर्ड है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट होगा ना ये अंकित जी. हाँ, बट इस पे GST तो आएगा ही सर. आएगा ही आएगा. वो तो बार्टर कंसिडर होगा. जो barter, मशीनरी की ट्रांजैक्शन वैल्यू और जो स्टॉक की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, रंजन जी, उस पे GST आएगा 100%. GST लगेगा जी. Sir, in any month 3B was filed nil and no ITC claimed. In spite of having ITC now, authority demand interest on ITC not claimed in particular month but claimed in next month. Sir, ITC आपने लेट लिया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे लगा सकता है? आपकी क्वेरी क्लियर नहीं है. या तो इन्हीं जिस पीरियड में आपने निल ITC फाइल करी है वहां पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की डिस्चार्ज नहीं करी है, मतलब रिटर्न से अप्रोप्रिएट नहीं करी नहीं, है. ये क्या हो रहा है सिद्धांत जी, इसमें ना कुछ स्टेट अथॉरिटीज में क्या हो रहा है कि जैसे सपोज 2A के अंदर ITC फॉर एग्जांपल 100 रुपीज आ रहा है और बंदे ने 80 रुपीज क्लेम करा, 20 रुपीज GST क्लेम नहीं करा, और दैट इज रिलेटेड टू द गुड्स. So they are issuing the notices that why this should not be considered as a sale of your company or business entity. Why the tax should not be demanded on the same. नहीं, तो मैं ये इश्यूज भी आ रहे ट्रांसफर हैं. ऑफ बिजनेस कैसे? बेसिकली है क्या कि वो ये कहते हैं कि ये आपने माल खरीदा, आपके 2A के अंदर क्रेडिट आ रहा है, बट आपने किताबों में नहीं लिया, तो हम ये मानते हैं कि ये गुड्स आपके पास आया है, तो आप इसे प्रूव कीजिए कि ये गुड्स आपके पास नहीं आया और आपने सेल नहीं करा. अगर आप इसे प्रूव नहीं करते तो हम इसे सेल मान के इस पे आउटपुट मांगेंगे आपसे. बेसलेस एलिगेशन है. हाँ. तो ऐसी ऐसी चीजें भी हैं, बट आगे चलते हैं फिर. मनदीप खुराना जी की, बैलेंस इन एक्युमुलेटिंग इन कैश लेजर ड्यू टू GST TDS कैन बी. यस. इसमें तो सर्कुलर भी है. सर्कुलर भी है जी. जनवरी 2022 के अराउंड एक रिफंड पे सर्कुलर आया था, उसमें बड़ी वेरी वेल क्लैरिफाइड है कि GST TDS जो एक्यूमुलेट हो रहा है आपका कैश लेजर में, उसका आप रिफंड लो. सरोज जी का यही कहना है सर, लायबिलिटी वाज नॉट डिस्चार्ज्ड.
सरोज जी, Yes. आपको अगर इंटरेस्ट की बात करें तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 देखना है, सॉरी 50 सबसेक्शन 1 देखना है, जिसके अंदर अगर आपका नेट पेएबल बन रहा था, अगर आपका नेट पेएबल बनना था तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, अगर नहीं बनना था तो इंटरेस्ट नहीं देना होगा। क्यों सिद्धांत जी, कुछ और तो अंकित जी, इनकी शायद क्वेरी, हाँ बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, बट क्वेरी क्या आती है कि फॉर एग्जांपल इनिशियल पीरियड्स में रिटर्न फाइल करने में सबसे गलती हुई। एक असेसी ने जुलाई 2017 में, अगस्त 2017 में उसकी फॉर एग्जांपल 10,000 की आउटपुट लाइबिलिटी थी और 15,000 का आईटीसी था किताबों में, बट उसने रिटर्न में रिटर्न नील फाइल कर दी, ना तो ओटीएल डिक्लेयर किया और ना ही आईटीसी डिक्लेयर किया। जी जी। तो अब इस केस में डिपार्टमेंट क्या कहता है, आईटीसी तो हम देंगे नहीं क्योंकि रिटर्न में आपने शो नहीं किया, और जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे हम आपसे टैक्स भी लेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल 16(4) भी तो ऐसे इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट। हाँ, लोगों ने तो 17-18 की रिटर्न दिसंबर सॉरी 20 में फाइल करी फॉर एग्जांपल, या 19 में फाइल करी, फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि जी हम इनपुट तो देंगे नहीं 16/4 का, आउटपुट का टैक्स दे दो कैश में। वो लिटिगेटिव है, लेकिन अब हमारा व्यू तो यही है कि भाई अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्डेड थी और आपका आईटीसी भी रिकॉर्डेड था, तो रिटर्न में जो गलती हुई है दैट इज जस्ट अ प्रोसीजरल लैप्स, वो एक प्रोसीजरल रिप्रेजेंटेशनल एरर है, बट आपका सब्सटैंटिव बेनिफिट डिनाई नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए सरोज जी मेरे व्यू में। एंड ऑलरेडी इस तरीके के केसेस डिपार्टमेंट टेकअप कर रहा है, शो कॉज नोटिसेस इशूड है, रिप्लाई सबमिटेड है, अब एजुडिकेशन होना है। थैंक यू सर। दीप जी, गुड़ और चोकर पे 5% रेट है सर, नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी। अभी इसके अंदर तो मुझे नहीं दिखा जो जीएसटी काउंसिल के डिसीजन आए हैं, बिकॉज वो ग्रेन्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, प्री लेबल्ड और प्री पैकेजिंग। उसके अलावा गुड़ और चोकर मुझे नहीं दिखा इसके अंदर। सो यू हैव टू गो थ्रू विद द नोटिफिकेशन। जैगरी पे सर्विस के केस में आया है ना, बट जो वो ऑलरेडी टैक्सेबल हाँ, वो वेयर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग, हाँ जी जी। There is a clarification, renting of vehicle सर with operator मैं बोलता हूँ, हेलो प्लीज। सर, ये क्लेरिफिकेशन है ना जो पॉइंट नंबर E2 में है और पॉइंट नंबर 7 में है, रेंटिंग ऑफ व्हीकल विद ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन टाइम बेसिस इज क्लासिफाइबल अंडर हेडिंग 9966 एट द रेट 18%। और फिर वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है इस कंसिडरेशन में तो 12% होगा। तो ये पहले प्रोविजंस क्या रहे थे और अब क्या चेंज हुआ है? ये अंकुर जी, मेरा भी ये थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन है। वैसे तो देखिए, रेंटिंग ऑफ और सॉरी हायरिंग ऑफ अ व्हीकल टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो एग्जेम्प्ट था। अब ये एक एंट्री लेके आए हैं रेंटिंग, या तो वो जीटीए को नहीं दे रहा, उसकी इसको कवर करना चाह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये जो सिद्धांत जी, ये जो 7 पॉइंट है ना, इसके अंदर उन्होंने क्लियर कराया है कि पहले इस पे जीएसटी 18% था जिसमें फ्यूल इंक्लूडेड था। 7 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना सिद्धांत जी, जो मैंने हाईलाइट किया है, शायद आप देख पा रहे हो सिद्धांत जी। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। तो इस पे उन्होंने लिखा भी है कि इस पे अट्रैक्ट करता था जीएसटी 18%, जो कि अब 18 ना होकर 12% प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो होना भी चाहिए 12, जो हमने भी डिस्कस किया। पैसेंजर्स के केस में भी यही है ना कि विदाउट फ्यूल 18 लगता है और विद फ्यूल 12 लगता है, या 5% विदाउट आईटीसी। तो वही गुड्स के केस में उन्होंने रैशनलाइज कर दिया। जी। बट हैविंग सेड दैट, वो जो जीटीए वाली एग्जेम्पशन है वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू रहेगी। इसके रिस्पेक्ट में एक और पॉइंट है ना, एक जगह और पॉइंट है रेंटिंग ऑफ, जो ये अंकुर जी बता रहे थे। अंकुर जी प्लीज आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें बताता हूँ कहाँ पे लिखा है वो पॉइंट। 2 बार लिखा हुआ है सेम चीज ना उन्होंने। आई थिंक अंकुर जी आप प्लीज बताइए। अदर देन दैट सिद्धांत जी सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हाँ हैं। जी, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। मेरा थोड़ा सा 7 में यही था कि वो या तो अदर देन जीटीए अगर दे रहे हैं तो फिर वो उसको टैक्सेबल है तो 18% से 12% कर रहे हैं, क्योंकि जो जीटीए को अगर मैं हायरिंग पे देता हूँ ट्रक, तो वो तो एग्जेम्पशन कंटिन्यू रहेगी ना, उसके लिए तो कोई विड्रॉल है नहीं, वो टैक्सेबल नहीं है। वो ये कह रहे हैं सिंपल कि वो पहले 18 था, अब हम 12 कर रहे हैं, जो टैक्सेबल था। जो नहीं, वो अदर शायद ये कह रहे हैं कि पहले 18% होता था, बट अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है उस कंसिडरेशन में तो 12% कर देंगे। वो केवल खाली इतनी वो एक एडिशनल कंडीशन अगर है तो। जी। तो आई थिंक लेट्स Ankit ji, any point further you want to add before closing? Already अपने ने काफी डिस्कशन, लंबा डिस्कशन हो चुका है।
जैसा कि मैंने सुमित जी स्टार्टिंग में बताया था कि हम्म। आज जो ये 2 दिन की जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है वो अपने आप में बहुत वाइड थी और अच्छे खासे इश्यूज इसके अंदर डिस्कस हुए हैं, इसीलिए ये इतनी बड़ी रही डिस्कशन। और अभी तो क्लैरिफिकेशन आनी है बहुत सारी जिन पे डिस्कशंस होंगी, प्लस नोटिफिकेशंस आनी है जिस पे डिस्कशंस होंगी। होनी सबसे बाकी बड़ा है। रेंटिंग ऑफ रिमूवल रेजिडेंशियल डेलिंग वाली जो क्वेरी बार बार ऑडियंस से आ रही है, ये इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। बहुत सारी चीजें हैं। इवन बिल्कुल अंकित जी, कोशिश रहेगी कि जैसे ही क्लैरिफिकेशंस आती हैं, नोटिफिकेशन आती हैं, हम एक मीटिंग दोबारा करें और इसको प्रॉपरली फिर से एनालाइज करें कि आज क्या हमने स्टडी किया था और बाद में क्या आता है एक्चुअली। जी। गौरव ठाकुर, गौरव थरेजा जी पूछ रहे रेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक ई स्कूटी टैक्स रेट, एनी आइडिया? जस्ट अ मिनट, एक मिनट देख लेते हैं। गौरव, रेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक ई स्कूटी रेट टेक्स। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो नॉर्मल बेसिकली रेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक सर सेम रेट है ना जो एज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ Okay. सेम रेट है। एंड 5% लगेगा। रवितोष कुमार जी, इवन फॉर आरसीएम ऑन रेंट कैब। इवन फॉर आरसीएम ऑन रेंट वो तो कैब। कंटिन्यूड है जी। सर बॉडी कॉर्पोरेट अगर रेंट पे लेता है रेंट अ कैब सर्विस को फ्रॉम अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो आज भी आरसीएम में है। अब जो ये इन्होंने प्रपोजल दिया है इसको देखना होगा थ्रू नोटिफिकेशन कि क्या सब कुछ आरसीएम में कवर कर लेते हैं। एंड आई थिंक सारी क्वेरी कंप्लीट हो गई हैं। ठाकर जी की भी क्वेरी आई थिंक आप लोगों ने ले ली थी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जी रिलेटेड। उस पे काफी डिस्कशन ऑलरेडी हाँ, already हो चुका है। रह गई है। एक रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आफ्टर कोविड 1 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूजिंग फॉर बिजनेस आल्सो डेबिटिंग रेंट इन बुक्स नाउ इट इज कवर्ड। हाँ सर, जो यूज एज रेजिडेंस के लिए नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे वो टैक्सेबल है। So special thanks to Ankit ji and Siddhant Pathak ji for giving your precious time that too on a short notice, इतने short notice पर आप लोगों ने ये session plan किया, and सभी participant का special thanks for joining and making this interactive, जहाँ पर more than 1.5 hours से ऊपर हम already discuss कर चुके हैं। अंकुल जी saying thanks. Ankit ji, please conclude by your words. I basically thank to Sumit ji for organizing this all session today, team CASA. I thank सिद्धांत पाठक जी, मैंने कल इन्हें फोन मिलाया, मैंने कहा सर रात की नींद थोड़ी सी खराब करनी पड़ेगी एंड लेट्स डिस्कस इट एट 1 o'clock। तो सिद्धांत जी ने बिना 1 मिनट लाए बोला हाँ जी सर बिल्कुल करते हैं। So and I thanks कुछ viewer लोग होते हैं also। ना जिनके लिए कभी ना नहीं होती। Great Siddhant ji, and this guest And I thanks viewer also that they have participated in a good number and proper पूरा 1.5 घंटा thank you सबने Sarup ji. Sarup ji is Very my good. good friend and all are my good friend and definitely सभी लोगों ने participate किया तो बड़ा अच्छा कहता है ना कि सेशन और अच्छा हो गया। जो हमारा एक सेशन 1 घंटे का प्लान था कि हम लोग 1 घंटा डिस्कस करेंगे, वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा रहा सर। थैंक यू। And thanks to सिद्धांत पाठक जी again। सिद्धांत जी प्लीज आप जो लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे तो फिर एंड करते हैं। सर आई वुड ओनली से दैट इस तरीके के सेशंस जैसे हमने जस्ट काउंसिल की शायद 4 या 5 बजे प्रेस रिलीज आई और हम 1 बजे यहाँ पे डिस्कशन के लिए बैठ गए, इसका एक एडेड एडवांटेज जो हम लोगों के लिए शायद मैं इस प्रेस रिलीज को डिलीजेंटली तब नहीं पढ़ता जब ये सेशन नहीं होता। ओवरलुक तो हम कर लेते हैं जब आती है, बट एक एक पॉइंट को पढ़ना वो सब तभी पॉसिबल है जब एक सेशन ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया और आपकी भी क्वेरीज आती हैं, उससे एक और इंसाइट मिलता है। डेफिनेटली आई नोटेड 2-3 पॉइंट्स जो क्वेरीज आई, जैसे एक आइसक्रीम वाला अच्छा पॉइंट है इसमें जो सर की क्वेरी थी। तो इस तरीके से इट इज नॉलेज शेयरिंग इज अ 2-way प्रोसेस, बोथ द पार्टीज आर बेनिफिटेड। डेफिनेटली सिद्धांत जी ये बात आपने सही कहा कि जब क्वेरीज आती हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा तभी वो क्वेरी निकल कर आई। प्रदीप जी डेफिनेटली हमारे सारे सीए ब्रदर्स जो जुड़े हुए हैं व्यूअर्स, उनको जवाब देने के लिए हमें और कशमकश तैयारी रखनी पड़ती है बिकॉज क्वेरी उसी लेवल की आ रही है। सो आई थैंक्स व्यूअर्स, ऑल द व्यूअर्स, टीम कासा। प्रदीप जी वांट टू से समथिंग। जी प्रदीप जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन था मेरा जी सर, ये गुड़ और चोकर पे क्या जो जीएसटी 5% लग गया, ये 18 जुलाई से लागू है? सर रेट्स तो सारे 18 जुलाई से लागू है, बट गुड़ और चोकर पे कहाँ लगा है सर? मुझे रिकमेंडेशन में नहीं मिल रहा। एक वेयर हाउसिंग पे लगा है सर। वेयर हाउसिंग पे लगा है, गुड़ और चोकर पे नहीं है।
नहीं नहीं, गुड़ सर चोकर ये पे तो कोई ये कह चेंज रहे हैं नहीं कि हुआ उन है। पे ऑलरेडी टैक्स है। मेरे को नहीं, अभी गुड़ रेट पे- सर देखना पड़ेगा। सर गुड़ पे टैक्स नहीं है ऑलरेडी। तो सर अभी कोई चेंज रिकमेंडेशन में नहीं है। आई एम नॉट एक्चुअली लुक फॉर। एक्चुअली क्या है सर, मेरी पार्टी है जो गुड़ और चोकर बेचती है, वो मेरे से कंफर्म कर रही है। मैंने कहा भी अभी मैंने तो कहीं लगा नहीं है, नहीं। कह रहा मील वाले कह रहे हैं कि चोकर पे लग गया है। प्रदीप जी अभी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। वो जो जी ग्रेन्स वाला हम डिस्कस कर रहे थे ना, जी जो हम ग्रेन्स वाला काफी डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे कि वो प्री लेबल्ड होगा, प्री पैक्ड होगा, ब्रांड जी होगा, तो जी उसको जी लेकर एम्बिग्यूटी है। बट जी अभी तो 18 से पहले कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं, ठीक है let's wait for the notification to come. It will be जी, clarified in that and we can explain and we can share that also. Don't worry. ठीक है सर। सर अभी एक आपको यही जवाब देना है सर। सर एक पॉइंट और था मेरा, Please, जैसे please. वेयर हाउसिंग का आप बता रहे हो, तो जैसे वेयर हाउस में हमने गुड़ रखा हुआ है स्टॉक में अपना, उस पर जी। थोड़ी लागू होता है। सर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक उन्होंने, आप जब एग्जामिशन नोटिफिकेशन 12/2017 देखेंगे तो जी उसके अंदर जो वेयर हाउसिंग में एग्जामिशन है उसमें लिस्ट ऑफ कमोडिटीज हैं। तो अब जी उसमें से कुछ इन्होंने प्रपोज करिए जो ये हटा रहे हैं, जिन पे टैक्स अच्छा लगता है। जी तो माइट भी गुड़ अगर टैक्सेबल होगा तो उसकी जी वेयर हाउसिंग भी टैक्सेबल होगी। सो लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन, इट विल बी क्लैरिफाइड इन द डेज टू कम प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, Pradeep ji, and thank you to each one of you for joining and making this interactive session successful. Thank you, Thank you, Siddharth ji. everyone. Thank you, Ankit ji. Thank you, Saroj bhai, and thank you to each participant. Thank you. Thank you.